Today's topic is accounts and records and GST Suvidha provider and practitioner. So by the nature of the topic, it seems very theoretical, both the topics. But what I have tried to do is I've tried to also put slides which will help us practically how to read the records and accounts and records, balance sheet, PL, when we are doing investigation or departmental audit or any scrutiny, where to look into the SSC's balance sheet or PL from the perspective of GST, right? So I think we should focus more on that because that has more practical aspect, right? Are we on the same page regarding this? Okay. So we will initially go through the theoretical part quickly, and then after that we'll try to cover the practical part as much as possible. But as much as we can cover, I've put 300 plus slides here. So that is for your reference also. This can become, actually yesterday we covered around 140 slides. So usually we don't give that much of data, but then it is yesterday we covered 140 slides actually. Today we'll try to see how much we can cover. But this slide will be there for you to refer to. Okay, so accounts and records under GST. Now accounts and records, it can be a written or printed record of any sort or electronic record, right? Now it can be manual also, electronic record also. Now when we look into a client's ERP system or his books, Tally or SAP or something, what is recommended for the client to have multiple input accounts. That is IGST, CGST, SGST, 3 are there. Now 2.5%, 6%, your 9%, like that. So that there is absolute clarity while you do audit, departmental audit, that whether there is any block credit or not. Like for example, 28% rate. Usually we see that it is block credit, right? Capital goods. Maybe it may not be pertaining to our business. So it is always recommended by the professionals to the clients that please make as many input accounts with rate wise also, so that for you, the departmental officers also, for us chartered accountant auditors also, it becomes easier for us to scan through all the transactions in the nature of those rates, right? We already know all this. There are 3 ledgers which are available on the portal. That is electronic liability ledger, electronic credit ledger, electronic cash ledger, right? So electronic liability ledger, we know that whenever we have a particular assessment order, right, in DRC 07 or something like that, that particular amount, it gets transferred to the electronic liability ledger. Whenever we file GSTR 1, we are about to file GSTR 3B, right? After set off, the remaining amount which we pay either by your cash ledger or we pay by electronic credit ledger, that amount it goes to the liability ledger, and then we use our electronic credit ledger or cash ledger to set off, right? These are all theoretical, we know all these things. Okay, who must maintain accounts under GST? So every registered person is required to keep and maintain all records at his principal place of business. Now, sir, you may say in principal place of business, I am maintaining manual records of principal place of business. For example, in Girishpa, I have one additional place of business in Dankuni, one additional place of business, for example, in Matia Bruch. So there are 2 different additional places of business. What is additional place of business? That from those places of business, apart from the principal place of business where you usually carry out businesses, maybe within the same state, under the same GSTN as well as PAN. So they may not require different GST registrations. But what does the law say? The law says that for the principal place of business, if you have manual records registered, जैसे manual जो खाता बॉई खाता अपने जो maintain करते हैं, तो वो principal place of business के related आप principal place of business में रखिए. एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस के रिलेटेड जो मैनुअल खाता है, आप एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस के अंदर रखिए. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रखते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मतलब SAP, ERP, एक्सेट्रा, बिजी एंड ऑल दोस थिंग्स. So for all of your additional places of business, you are supposed to keep the electronic data in your principal place of business. Electronic data, but not the manual data. Requirement नहीं है. Manual data can be put in the additional places of business as well. ये पॉइंट समझ में आया आप लोग को? इलेक्ट्रॉनिक डेटा नीड्स टू बी सेंट्रलाइज्ड एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन एडिशन टू इट बीइंग इन द एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस. मैनुअल डेटा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर इट टू बी अवेलेबल इन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज वेल. रिकॉर्ड्स अंडर जीएसटी, दिस इज सेक्शन 35. देखिए सेक्शन 35 है और रूल 56 है, ठीक है. ये 3 पेज, 1 पेज का 4 पेज में पूरा इन लोग बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स, रिकॉर्ड्स रखना है अपने को, राइट. So section 35 read with rule 56.
वी नो ऑल दिस। इसमें अब देखिए प्रोडक्शन, अब कोई भी मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर को क्या क्या है, मतलब कि कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, 2 यूनिट का रॉ मटेरियल आ रहा है और मेरा आउटपुट है 1 यूनिट, तो 2:1 वी नो द इनपुट आउटपुट रेशियो। हाउ डू वी नो दैट? वी नीड टू हैव डिटेल ऑफ ऑल द क्वांटिटेटिव एंड मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा ऑफ रॉ मटेरियल। कितना टाइप का रॉ मटेरियल है, ग्रेड ए बी सी डी, कितना मेट्रिक टन है, क्या वैल्यू है उसका, राइट? तो वो वी नीड टू कीप खाता ऑफ दैट, ऑफ वी नीड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वी नीड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ आल्सो द स्क्रैप एंड वेस्ट which comes out. Now ये सब इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मैनुअली भी, कोई भी ऐसा बंदिश नहीं है कि एक ही चीज करना है, बट इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप कर रहे हो तो वी नीड टू फॉलो सर्टेन मेजर्स, उसके बारे में वी विल डिस्कस। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, दैट इज गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। अब इंपोर्टेड और जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, obviously we need to have data of all of that, right? कितना import किए, how much IGST we have paid, the challan details, bill of entry, shipping bill for export, EGM export general manifest, etc., etc. All of that we need to have all of those details. Reverse charge ka we need to have, what did we discuss yesterday? Self invoice under section 31(3)(f), right? So we need to have self invoices in case when we purchase goods or services from unregistered supplier. We need to keep all those data. Stock data very important. ये तो ऑडिट में आप लोग को ये तो चेक करना पड़ेगा आप लोग को। ओपनिंग बैलेंस रहता है आपका, उसके बाद में इनवर्ड्स रहता है कितना परचेज हुआ है, उसके बाद में आपका आउटवर्ड्स रहता है कितना आपका बिका है, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस रहता है, राइट? आउटवर्ड्स में आपका क्या होता है, सेल भी हो सकता है, स्क्रैप भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकता है, रिटर्न ऑफ भी हो सकता है, राइट? तो वो यू विल हैव टू रीड दैट, सो दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड मैंडेटरीली बाय द एसएससी। सेपरेट रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड फॉर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के लिए अलग, फिनिश गुड्स के लिए अलग, स्क्रैप के लिए अलग। वी नीड टू मेंटेन ऑल डिफरेंट स्टॉक डेटा फॉर ऑल ऑफ दीज डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इनपुट्स। Stock should contain information HSN. We discussed about HSN yesterday, right? 6-digit mandatory in e-invoice, way bill, normal invoices, जो अभी हो गया है for turnover more than 5 crores, and turnover less than 5 crores is 4-digit. For exports it is 8 digits. We know that. ये सब तो एकदम मतलब कि बेसिक चीज है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम किए हैं, कितना यूटिलाइज किए हैं, कितना रिवर्स किए, वी नीड टू हैव ऑल ऑफ दैट डेटा। ये सब डेटा अगर नहीं होगा तो कैसे बिजनेस कैसे चलेगा? रिकॉन्सिलिएशंस ऑफ 2A with 3B, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ 2B with 3B, ये तो हर महीना करते हैं तभी तो रिटर्न फाइल होता है। सो ऑल दीज नीड टू बी देयर फॉर आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड आल्सो। रजिस्टर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, ये सब देखिए, ये सब जो मेंशन किया हुआ है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तो ऑटोमेटिकली टैली क्या साथ बनाते जाता है। आप डेटा डालिए, मास्टर्स बनाइए, रजिस्टर तो ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाता है। ये मैनुअल के लिए भी बोल रहा है, मैनुअल के लिए भी ऐसा ऐसा रजिस्टर्स होता है। जब आप लोग का मैं दिखाऊंगा जीएसटी AM एनेक्शन 9 जब मिलता है, जो ऑडिट ऑफिसर्स लोग आप लोग हम लोग को देते हो, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगता है वो भी देखेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स है, और ये इलेक्ट्रॉनिक आपका है, तो या तो आप टैली का बैकअप दे दीजिए, यू कैन फाइंड दैट आउट, या तो यूजुअली दे से इफ दे डू डेस्क ऑडिट तो बोलते नहीं आप ये सब प्रोवाइड कर दीजिए, वॉल्यूमिनस डेटा होता है। सो ये सब डेटा से ही पता चलता है उनको ना क्या वायलेशंस हुए। रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान, ई-वे बिल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, ऑब्वियसली वी नीड टू हैव ऑल ऑफ दिस। अदर डॉक्यूमेंट्स, टैक्स इनवॉइसेस, इनवर्ड आउटवर्ड बिल्स, और सब डिस्कस किए थे कल। व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑल दिस? रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चालान, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ई इनवॉइस, वे बिल, कंसाइनमेंट नोट्स, ये सब तो सब अपने कल डिस्कस किए थे। ये सभी बोल रही है बिल ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा। वी हैड डिस्कस दिस पेज यस्टरडे इफ यू रिमेंबर। टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, क्या क्या केस में क्या क्या होता है। अब रिकॉर्ड्स अंडर जीएसटी, परचेज रजिस्टर, जितना परचेज आपने किया है उसका डिटेल्ड परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू वेंडर के टू बैंक, तो इसको क्या बोलते हैं अपने एक्सपैंडेड ट्रांजैक्शन। एक्सपैंडेड तो एक्सपैंडेड आप लोग जब भी मांगते हो ऑडिट में तो क्या बोलते हैं? डिटेल ट्रायल बैलेंस चाहिए। डिटेल ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या हुआ? ओपनिंग बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस, और हर सब हेड का सब हेड, फर्दर सब हेड जब तक और खुले नहीं हो, उसको बोलते हैं डिटेल ट्रायल बैलेंस। तो वही आप लोग ऑडिट में मांगते हैं, राइट? मैं आपको सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दूं, बीच में साल में क्या ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट का मूवमेंट हुआ है, इफ यू गाइस डोंट नो दैट देन हाउ विल यू डू ऑडिट, राइट? So purchase register, sale register, stock register, output tax liability,
ये सब बेसिक है. ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, द रजिस्टर शुड हैव डिटेल्स कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने क्लेम किया है. ये मैच होना चाहिए आपका जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है पोर्टल में, उससे मैच होना चाहिए. राइट. Accounts to be maintained. Now the registered person must also maintain an account of tax payable, tax collected and paid, input tax credit claimed. इसे सब अभी अपने डिस्कस किया. Rule 56, Section 35 of CGST Act, Rule 56 of CGST rules. ये दोनों साथ साथ में जाता है. ये दो सेक्शन है और एक सेक्शन और एक रूल है. ये पूरा आपको अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स का बताता है क्या क्या अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन होना चाहिए. राइट. अब इसमें बोलते हैं कि नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ सप्लायर्स, जितने सप्लायर्स है आपको आपके वहां पर नेम्स एंड एड्रेस होना चाहिए उसमें. तो टैली में जब मास्टर्स बना रही है तो सैप में बना रही है, बिजी में बना रही है, ओरेकल में बना रही है, एनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जोहो बुक्स में कर रही है. मास्टर्स में जीएसटीएन के साथ में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल, वी नीड टू प्रोवाइड डिटेल्स एंड नेम्स फॉर ऑल द सप्लायर्स. ये लॉ है. दी ऑफिसर्स कैन आस्क अस कि काइंडली गिव अस अ लिस्ट ऑफ ऑल योर सप्लायर्स विद ऑल द डिटेल्स ऑफ एड्रेसेस ऑफ देयर्स, कंप्लीट एड्रेस ऑफ ऑल द गुड्स स्टोर्ड वेयर हाउस. अब माल आ रहा है 200 किलोमीटर का मेरा ईवे बिल है. राइट. तो अब अपने को पता है कि पर डे अपना 100 किलोमीटर का है ना वे बिल का, 100 किलोमीटर का है पर डे का. तो मैंने मेरा उसमें मानिए फॉर एग्जांपल जल्दी आ गया. ठीक है. अब जल्दी आ गया, मेरा तो एक छोटा सा दुकान है, तो आई कैन नॉट कीप माई गुड्स देयर. तो मैं क्या बोलता हूँ ट्रांसपोर्टर को, सर आप ही ट्रांसिट में वेयर हाउस में डाल दीजिए. एंड द ट्रांसपोर्टर he is not my additional place of business. तो ट्रांसपोर्टर मेरा माल जो आपका वे बिल जो कंटिन्यू हो रहा है उसके बीच में वहां पर रख के रखा है. मानिए वे बिल का एक्सपायरी हो गया, उसके बाद में वो ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में छापा लग गया. तो ट्रांसपोर्टर बोलता सर ये तो मेरा माल तो है नहीं, हम तो ट्रांसपोर्टर है, ये तो सामने वाला का माल है. बोलेंगे हम मानेंगे नहीं, सामने वाला का माल है. वे बिल आपका एक्सपायर हो गया. दिस इज नॉट एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द पर्सन. तो इसको क्या करेंगे, दिस विल बी कंसिडर्ड एज सोल्ड by the recipient. जो आदमी माल मंगाया है ये मान लेंगे डीम्ड सेल और उसके ऊपर में इंटरेस्ट पेनल्टी लगाएंगे. राइट. इसको बचाने के लिए भी कुछ कुछ सर्कुलर्स आए हैं, वी विल डिस्कस एंड ऑल दैट अभी आगे में. इफ एनी गुड्स आर स्टोर्ड इन एनी अनडिक्लेयर्ड प्रीमाइसेस, टैक्स शैल बी चार्ज्ड ऑन दोस गुड्स बाय द ऑफिसर. बुक्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू बी केप्ट इन प्रिंसिपल प्लेस एंड एवरी एडिशनल प्लेस, जैसे मैंने आपको बताया. एंट्री शैल नॉट बी डिलीटेड रिप्लेस. अब देखिए वी ऑल नो दैट ये जो आपका लॉग है ये वाला अपने डिस्कस करते हैं. एडिट लॉग का अपने डिस्कस करेंगे. देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट शैल हैव अ लॉग ऑफ एवरी एडिटेड एंड डिलीटेड एंट्री. इसका मतलब क्या हुआ सर, ये देखिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स दे नीड टू हैव एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर which has an edit log. edit log का मतलब क्या हुआ, अगर आज के दिन में मेरा कोई इनवॉइस छूट गया 2 महीना पहले का, मैं इनपुट क्लेम कर सकता हूं. When is the last date to claim input for 24-25 is 30th of November 25. So I will make the input, the entry in my tally today. back entry मैं करूंगा. राइट. बैक एंट्री मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल इनवॉइस डेट इज प्रीवियस, पहले का डेट, और वाउचर डेट है आज का. तो अब क्या होगा इसमें, मेरा जो एडिट लॉग है, एडिट लॉग मतलब कि एक तो ऑडिट ट्रेल होता है, एडिट लॉग जो एम्बेडेड होता है सॉफ्टवेयर के अंदर में. कोई भी बैक एंट्रीज अगर होते हैं, कोई भी अगर अमेंडमेंट्स होते हैं, डिलीशंस होते हैं ऑफ एनी एंट्री, तो उसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है. तो आप लोग जब ऑडिट के टाइम में व्हेन यू गाइस आस्क फॉर ऑल ऑफ दिस डेटा एंड आस्क फॉर टैली बैकअप और बिजी बैकअप, so now all those softwares have an edit log. You can access edit log and you can see अच्छा 300 ट्रांजैक्शन में अमेंडमेंट हुआ है, अच्छा ये कौन से 300 ट्रांजैक्शन हुए, अच्छा 200 ट्रांजैक्शन बैक डेटेड हुआ है, इसका मतलब कि कुछ कैश का होएगा या तो you can focus on those vulnerable areas. This become the law. ये तो लॉ है from 1st of April 2023, not under GST but under Companies Act. It is for all companies, private limited, public limited. ये नॉलेज अपने को होना चाहिए. And you have the right to ask for the backup of the accounting software and you can get into the edit log and you can see. अब तो ऑडिटर्स जो हम लोग होते हैं, हम लोग को अटेस्ट करना पड़ता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में कि सर पहला तो चीज है क्या, ऑडिट ट्रेल फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इज देयर थ्रू आउट द 12 months फ्रॉम 1st April 24 to 31st March 25. सर what do I need to whatever attest another, creating an edit log of each change made in books of accounts along with date where such changes were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled. मतलब मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, मेरे को अटेस्ट करना पड़ेगा क्या, ये देखिए
ये मेरे को अटेस्ट करना पड़ेगा इन माय ऑडिट रिपोर्ट एज अ सीए वेदर द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर दिस हैज यूज्ड सच टैली बिजी सैप फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच हैज अ फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग एंड द सेम हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर. एडिट लॉग में 6 महीना बंद कर दिया, 6 महीना मैं ऑन रखा, तो ये मेरे ऊपर में क्वेश्चन आएगा बिकॉज आई एम द सीए ऑडिटर. सो आई एम अटेस्टिंग दिस कि नहीं सर 12 महीना ऑडिट ये जो एडिट लॉग है चल रहा था एंड द ऑडिट ट्रेल फीचर हैज नॉट बीन टैम्पर्ड विद एंड हैज बीन प्रिजर्व्ड एक्सेट्रा. सो दिस हैज बिकम द लॉ. तो ये आप लोग को समझना इंपॉर्टेंट था. अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला, ये देखिए, दिस इज अ सर्कुलर 6135/2018. इसमें क्या हो रहा था, फॉर टेक्सटाइल पीपल, इन लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग के दुकान में जगह नहीं है, ट्रांसपोर्टर की जगह में हम लोग गोडाउन में छोड़ करके रखते हैं और आप लोग परेशान करते हो, रेट करते हो, आप लोग बोलते हैं कि ये माल इनका नहीं है, उनका नहीं है, व्हाट शुड वी डू. तो ये एक सर्कुलर निकाले डिपार्टमेंट. सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, इन केस अ कंसाइनी टेक्सटाइल परचेजर और रेसिपिएंट टैक्सपेयर स्टोर्स हिज गुड्स इन अ गोडाउन ऑफ अ ट्रांसपोर्टर, the transporter's godown has to be declared an additional place of business for the textile businessman, for the recipient. In such cases एक तो डिक्लेरेशन ले लीजिए और पोर्टल में जाकर के आप अपना एक तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दे दीजिए. So where the transporter's godown has been declared as an additional place of business by the recipient taxpayer, the transportation under the e-way bill. अब e-way bill आपका एक्सपायर हुआ नहीं है, ठीक है, मेरा वहां पर आपका गोडाउन में ट्रांसपोर्टर का पड़ा हुआ है और ट्रांसपोर्टर का गोडाउन इज माय एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. तो यही माना जाएगा ना, मैं रिसीव कर लिया हूं क्योंकि मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में माल आ गया है, तो काम खत्म. सो ट्रांसपोर्टर के गोडाउन विच इज रजिस्टर्ड एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर मी, माल अगर वहां पर आ जाता है तो इट विल बी अज्यूम की डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, ई-वे बिल शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड वंस द गुड्स हैव रीच्ड द ट्रांसपोर्टर्स गोडाउन. तो ये आपका है सुविधा के लिए, राइट, कि अगर आपका ई-वे बिल वैलिडिटी चैलेंज नहीं किया जाएगा इस पे कि अच्छा ये तो एक्सपायर हो गया ई-वे बिल, ये आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है, किसका माल है ये, राइट. But at the same time, the transporter or the warehouse keeper, he has to maintain details and documents. सिर्फ आपका तो वो स्टोर नहीं कर रहा है ना, वो तो स्टोर कर रहा है हजारों आदमी का. तो he needs to have from pillar to pillar अलग अलग उसको, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, एरियाज बनाना पड़ेगा where it can be easily identifiable कि कौन से रेसिपिएंट का कहां पर माल पड़ा हुआ है, so that if any proper officer goes to any transporter godown in any given day, he can see अच्छा ये माल आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, अच्छा ये रिसीट डिस्पैच, ये मूवमेंट आपका ये हुआ है, खाता से ये दिख रहा है, माल यहाँ पर पड़ा हुआ है, इतना क्वांटिटी इतना वैल्यू है, डिलीवरी चलान यहाँ पर है, वे बिल यहाँ पर है. दोस डेटा नीड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द ट्रांसपोर्टर और द वेयरहाउस कीपर, राइट. अच्छा, फॉर मैंने क्या बोला आपको, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, ईदर ऑफ द टू वी कैन डू. बट अगर आप लोग ऑडिट के लिए मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हो तो इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर, दैट I need to digitally sign and say that these are my documents which I have extracted from the ERP system. Proper backups need to be there. ये वाला चीज नहीं है 20 साल पहले के रिक्शा से जा रहे थे, बुरा था, नीचे पानी में गिर गया तो खत्म हो गया, डॉक्यूमेंट्स नहीं है. नो, यू नीड टू हैव प्रॉपर बैकअप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, राइट. आग लग गया तो सर आपके पास उसमें बैकअप होना चाहिए वहां पर. ये रीजन आप लोग नहीं मानेंगे एसएससीज का कि सर ये तो हमारा बैकअप भी आग लग गया, पूरा ऑफिस में आग लग गया, जो भी चीज है, तब फिर उसके बाद में देखना पड़ेगा कि क्लाउड आप क्यों नहीं लिए, कि आपका डेटा कितना अवेलेबल है 2A 2B ई-वे बिल में, बेस्ट एक्सपार्टे ऑर्डर आप लोग को करना ही करना है, कि उसमें वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हो जाता है. लेकिन कितने केस ऐसा होता है कि किसी का बैकअप ही नहीं है, अपने को पता है, राइट, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, हाउ लॉन्ग वी नीड टू कीप, वी विल डिस्कस दैट. ये हमारा दायित्व है एंड यू कैन क्वेश्चन दैट, राइट. अच्छा, आप लोग कभी भी अगर INS 1 लेकर के आए और कोई भी वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इंस्पेक्शन कर रहे हो, राइट, सो यू हैव द राइट टू एक्सेस ऑल ऑफ दीज डेटा बाय आस्किंग द पासवर्ड, और वी नीड टू कोऑपरेट. वी विल नीड टू गिव यू द कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आल्सो. हाँ जी, कर सकते हैं सर. नहीं, डिनाई कैसे कर सकते हैं सर, इंस्पेक्शन में तो आपका राइट है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहां पर, कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, गुड्स काउंटिंग है, आप लोगों से तो कर ही सकते हैं. बट आपको अगर कुछ भी चीज सीज करके लेकर के जाना है वहां पर, तो आपको उसके लिए मतलब परमिशन चाहिए, वहां पर चाहिएगा कि यहाँ पर आई हैव रीजंस टू बिलीव that there is tax evasion here of this particular amount from any officer not below the rank of JC. तो वो चीज करना होगा.
कर सकते हैं सर उसमें 67(2) में 70 में अगर सर जैसे बोल रहे हैं कि समन्स अगर स्पॉट इशू करना है तो स्पॉट समन्स भी इशू कर सकते हैं अपने वहां पर, और उसके लिए भी आपको रीजंस टू बिलीव आपको वो लेकर के आना पड़ेगा। इमीडिएटली आप समन्स कर सकते हैं, लिखा सकते हैं उनसे, राइट। बट ये सब जो है पासवर्ड्स एक्सेट्रा ये सब देना हम लोग का मतलब ड्यूटी है। लॉग मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अच्छा, मैनुअल खाता अगर मेंटेन कर रही है, कुछ भी अगर डिलीट करते इरेज करते तो ऐसे नहीं है कि बस डिलीट इरेज कर दिए, नहीं, इट नीड्स टू बी अटेस्टेड, वहां पर सिग्नेचर होना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीज होना चाहिए। बैकअप, हार्ड कॉपी, पासवर्ड, ये सब डिस्कस हो गया। ये भी देखिए मैनुअल, इन मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग आप बही खाता बड़ा सा देख रही है या तो कोई रजिस्टर देख रही है, कोई टैली वाली कुछ नहीं है। इन केस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनुअली ईच वॉल्यूम ऑफ बुक नीड्स टू बी सीरियली नंबर्ड। रजिस्टर नंबर 1 ये ट्रांजैक्शन से लेके ये ट्रांजैक्शन, ये इनवॉइस नंबर से लेके ये इनवॉइस नंबर, ये सीरियल नंबर से लेके ये सीरियल नंबर, ऐसे करके 6 तो बुक है सेल का, फिर 6 बुक है आपका परचेज का, उसका सीरियल नंबर। So it needs to be maintained in a serial number, properly chronologically organized. Any entry in the manual account shall not be erased, effaced. ऐसा नहीं कि आप लोग आने वाले हैं, हम लोग सब काट दिए ऐसे करके, तो that is not allowed. Erased, effaced, overwritten, all incorrect entries scored out under attestation. Attest करना पड़ेगा, reason देना पड़ेगा. Thereafter correct entry shall be recorded. Place of record keeping. ये देखिए, where more than one place of business is specified in the certificate of registration, accounts relating to each place of business shall be kept at each such place. ये तो मैंने बोला ही आपको, मैनुअल रिकॉर्ड है तो मैं कंप्यूटराइज करता नहीं हूं। आप मेरे को बोल रहे हो कि सर मैनुअल रिकॉर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में आप आए हो, बोलो कि सर आप मेरे को सब रिकॉर्ड दीजिए 12 आपका जो भी ब्रांच है। बोले सर हम कहां से देंगे आपको, ये तो लॉ भी बोलता नहीं है। आप अलग अलग जो आप हमारे ब्रांचेस में आप जाइए, वहां से आप रिकॉर्ड लीजिए मैनुअल, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक है तो यू हैव, आई एम बाउंड टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स एट दैट टाइम इन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अच्छा, कोई भी मानिए मेरा रजिस्टर है, बुक्स है, मेरा कोई फ्रेंड के गोडाउन में मैं छोड़ दिया और मेरा फ्रेंड के गोडाउन में छापा लग गया, तो क्या होगा, वो माना जाएगा तभी भी मेरा ही है। वो ये नहीं माना जाएगा कि वो उसका है तो उसके नाम पे हो जाएगा, नहीं, तभी माना जाएगा मेरा है। मेरे गोडाउन में किसी और का है तब शक होएगा सर कि आपके गोडाउन में किसी और का है, तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस की whose is it, गुड्स और एक्सेट्रा, वो यूजुअली मानते हैं कि सर जहां पर मिला वो नहीं का है। पीरियड ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, व्हाट इज द पीरियड, कितना दिन तक अपने को रिकॉर्ड्स रखना है। मिनिमम पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द ड्यू डेट। ये देखिए एग्जांपल देखिए, ड्यू डेट 22-23 का कब था, एनुअल रिटर्न का 9/9 का, ड्यू डेट वाज 31 December 23, 6 years 72 months, 6 साल जोड़िए 31 December 23 से 29 तक, इतना तक तो रखना ही है सर, ऐसे करके। लेकिन इसके बाद में एक और चीज है, मानिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चलने में 3 साल होता है, पहले तो होता था 2-3 साल चल रहा है, उसके बाद में शोकॉज नोटिस इशू होता था मेरे टाइम बारिंग के जिस 3 महीना पहले क्या 6 महीना पहले जो मैंडेट होता है ऑर्डर के 6 महीना पहले करना पड़ता है। ऑर्डर इशू होता मेरा ऑन द डेट, लास्ट डेट 5 August जो आपने कल बोले थे 2024, मैं अपील करता हूं 3 महीने बाद में, उसका फिर ऑर्डर आता है कमिश्नर अपील्स का 1 साल बाद में, फिर मैं जीस्टैट में जाता हूं, फिर हाईकोर्ट में जाता हूं, तो ये होते होते 20 साल हो गया, तो 6 साल तो निकल गया। तो इन लोग क्या बोलते हैं सर, व्हेन द लास्ट ऑर्डर और केस ऑफ प्रोसीडिंग इज ओवर डिस्पोज्ड ऑफ, 1 साल तभी भी उसके बाद तक भी आपको रखना होगा। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट 1 year आफ्टर द डेट ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ सच अपील और रिविजन, तो आपको 20 years तक भी हो सकता है रखना पड़े इफ द केस इज सब जुडिस और इन अपील्स और इन इन्वेस्टिगेशन। 1 year मोर देन दैट, इवन इफ इट इज मोर देन 6 years, yes we need to maintain। रजिस्टर्ड ये मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है, उसको क्या रखना है, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपने। प्रोडक्शन जितना है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ इंपोर्ट, सर्विस, मटेरियल, क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, बाय प्रोडक्ट्स, ये सब थियोरेटिकल है आपका। रिकॉर्ड्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, हु इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज समवन हु वर्क्स ऑन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर में कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस करता है, राइट। जैसे यहाँ पर कोई पुताई उताई हुआ एक्सेट्रा, सो दिस इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो दिस इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई है तो इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको मेंटेन करना है, जितना माल आया है, जितना माल वो दिए हैं, वो सबका डिटेल्स, रिसीव फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट गुड्स और सर्विसेज, यूटिलाइज्ड इन द एग्जीक्यूशन, details of payment received from the works contract, name and addresses of suppliers,
नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पर्सन्स ऑन बिहाफ ऑफ whom वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. एजेंट, इफ यू आर एन एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट हो, नॉर्मल एजेंट हो, तो एजेंट को क्या मेंटेन करना, ऑल ऑथराइजेशंस. प्रिंसिपल जो ऑथराइजेशन करता है एजेंट को, क्या बेचो सामने में और कमीशन आप कमाओ, राइट. तो ऑल ऑथराइजेशंस फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस और फॉर ऑल सप्लाईज नीड टू बी देयर उनके खाता में. पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, माल कितना आया है प्रिंसिपल से, कितना हम सप्लाई किए, कितना बचा हुआ है, कितना पैसा हम वापस ट्रांसफर किए, कितना पैसा मेरे पास आया, ऑल दोस डिटेल्स वी नीड टू मेंटेन. दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. Records to be maintained by owner, operator of goods, warehouse, transporter. ये देखिए, even if you are registered under GST or not registered under GST, अभी तक अपने डिस्कस कर रहे थे those people who are registered under GST. For owner of any warehouse or a transporter, even if you are not registered, whether registered or unregistered, you need to maintain the records of the consignor जो माल बेच रहा है, records of the consignee जिसके पास माल जाएगा, and कितना माल आया है, details of goods. You need to maintain that. Records of the transporter. Any person engaged in the business of transporting goods shall maintain records of goods transported, delivered, goods stored in transit, etc., etc. और मैंने आपको क्या बोला कि जहां पर भी माल रख रहे हैं जितने आदमी का, it should be easily identifiable कि वो उसी का माल है. ऐसा नहीं कि 50 आदमी है, 50 मेरा बेल आया है टेक्सटाइल का, पता नहीं है वो उसका, ये इसका, सब हॉचपॉच हो गया. नो, वी कैन नॉट कीप लाइक दैट. देखिए, ट्रांसपोर्टर हैज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड, गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांसिट बाय हिम, जीएसटीएन ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनी. वी डिस्कस्ड ऑल दिस. बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद रिस्पेक्ट टू पीरियड, कितना दिन तक माल पड़ा हुआ था, राइट. और आपका जो स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए, माल आया, कब आया, कहाँ रखा हुआ है, कब गया है, कहाँ गया है, राइट. अब जैसे कॉमन वेयर हाउस वेयर बहुत सब जनों का माल रख रहे हैं, तो इट शुड बी इजिली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए वहां पर, आइटम वाइज, ओनर वाइज. सर कर सकते हैं सर, लेकिन वो पूरा दिखाने का दरकार नहीं है. वो एक छोटा सा एरिया दिखा दीजिए कि 100 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट का जो मेरा है, उसको आप अलग से एक तो शटर डाल करके दिखा दीजिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे करके वो आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपना दिखा दीजिए. मेरा हमेशा माल आएगा, मैं बोल करके रखूंगा वहीं पे, आप जमा करके रखो, जिससे कि वे बिल एक्सपायर भी हो जाए, तभी भी माल आया हुआ मेरा ही जगह में है, बिकॉज मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है. ये आपका सर्कुलर ही बोलता है. अच्छा, 50,000 के ऊपर का अगर बिल है, एंड इफ इट्स अ B2C इनवॉइस, मतलब कि सामने वाला अनरजिस्टर्ड आदमी है, तो क्या क्या इनवॉइस में डिटेल्स अपने को देना है, मैंडेटरी, सब डिटेल्स देना पड़ेगा अपने को. वी हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ द कंप्लीट नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट जो अनरजिस्टर्ड हो. अगर 50,000 के ऊपर का अगर माल बेचे है, इवन इफ ही इज अनरजिस्टर्ड, कहां पर डिलीवरी हो रहा है, स्टेट नेम एंड स्टेट कोड. बट अगर 50,000 के नीचे का अगर बिका है, तो अगर बायर बोलता नहीं सर मेरा डिटेल्स आप दीजिए, तब आप दीजिए, नहीं तो इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट. डिटेल्स ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स. नाउ कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड बाय हिम इंक्लूडिंग, ये सब तो अपने डिस्कस कर लिए हैं. If any, देखिए, taxable goods are found at any place other than those declared above without any valid documents, officers may determine that these goods are sold. ये आपका है and it is sold. ये स्टॉक अभी नहीं है, बिक गया. अच्छा, पेनल्टीज मैं कुछ नहीं करता हूं. रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, आप लोग आते हो कि ऑडिट के टाइम में मांगते हो आप लोग, मैं आई एम अनएबल टू प्रोवाइड सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट, स्टॉक लेजर्स, आई एम अनएबल टू प्रोवाइड जॉब वर्कर ये लेजर, अनएबल टू प्रोवाइड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर, जर्नल वाउचर्स अपने देखेंगे. तो व्हाट इज द पावर इन योर हैंड दैट यू कैन प्रोवाइड अ पेनल्टी ऑफ 10,000 rupees, और इफ यू फील दैट आई हैव इवेडेड सर्टेन टैक्स, मैंने 10 इनवॉइस का मैंने मतलब एंट्री नहीं डाला बुक्स में और टैक्स की पेमेंट नहीं किया मैंने, तो आप पेनल्टी उसके ऊपर में भी डाल सकते हो, उसका रिकॉर्ड्स नहीं, और अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड फ्रॉम सच पर्सन. मतलब कि अगर 1 लाख रुपया का मैंने सेल दिखाया ही नहीं है बुक्स में, तो 18,000 रुपया का टैक्स है, तो 18,000 रुपया 100% आप एक पेनल्टी डाल सकते हो, या तो 10,000 रुपीज विच एवर इज हायर. सो ये बहुत बड़ा पावर है आपके हाथ में, और ये आपका लिमिट नहीं होता. दिस इज सब्जेक्टिव, इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड फ्रॉम सच पर्सन विच एवर इज हायर. दूसरा है फेल्स टू अकाउंट फॉर एनी इनवॉइस. परचेज इनवॉइस में बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्लेम करके बैठा हुआ हूं,
तो वो तो डिनाई हो ही जाएगा, बिकॉज वायलेशन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, पोजेशन ऑफ इनवॉइस और टैक्स डेबिट नोट होना चाहिए, बट साथ में पेनल्टी भी लगा सकते हैं। अंडर 122 shall be liable to a penalty which may go up to 25,000 under each act, CGST, SGST। ये अपने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए। ये देखिए नोटिस ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट EDD 1, ये अभी का ही है, जनवरी का ही है क्लाइंट का। ये देखिए ये आपका है GST AM 9, इसमें आपका क्या क्या है देखिए, गुड्स है ये these are services। In goods what all documents are usually required from the client for verification during audit? Purchase orders, what are purchase orders? मेरे को कुछ खरीदना है तो पहले कुछ requisition तो दूंगा ना मैं कि I want to purchase this much quantity, I want to purchase at this price, etc. So I am giving a purchase order to a supplier, so I need to provide purchase orders, price circulars. If I am selling to my customers, I need to have a price circular if it is a standardized good, right? Delivery challans, मैंने बताया था, जॉब वर्कर को अगर माल बेचती है तो कोई भी सप्लाई नहीं होता, तो वी नीड टू अटैच अ डिलीवरी इनवॉइस, डिलीवरी चलान विद एन ई-वे बिल। मटेरियल ट्रांसफर नोट, सेल बुक्स, आपका आउटवर्ड सप्लाई बुक्स, ये देखिए ऊपर का आपका इन रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग एंड आउटवर्ड सप्लाई डिपार्टमेंट। सेकंड स्टोर्स डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट में क्या स्टॉक का लेजर दीजिए पूरा, स्टोर्स लेजर। जीआरएन क्या होता है, गुड्स रिसीट नोट। जीआरएन मतलब क्या हुआ, माल एक्चुअल में आया है तो एक जीआरएन काटते हैं अपने, फिर जाकर के स्टोर्स में जाता है, स्टोर्स रजिस्टर में वो ऐड करता है, राइट। तो फॉर ऑल गुड्स विच हैव बीन रिसीव्ड एक जीआरएन होना चाहिए। बड़ी कंपनीज लोग गुड्स रिसीट नोट रखते हैं इसका। मटेरियल रिटर्न नोट मतलब कि क्रेडिट नोट अगर मैं इश्यू कर रहा हूं तो माल सामने वाला मेरे को वापस भेजेगा, राइट, परचेज रिटर्न हो रहा है, राइट। तो उसके लिए सामने वाला आदमी जो है मटेरियल रिटर्न नोट एक तो इश्यू करेगा, राइट, मटेरियल रिटर्न कर रहा है वो। रिजेक्टेड गुड्स रजिस्टर, इसे सब क्रेडिट नोट से रिलेटेड ही है आपका। वेस्ट रजिस्टर, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, जॉब वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब वर्किंग से देखने से क्या समझ में आएगा आपको कि सामने वाला ITC 04 फाइल किया है कि नहीं किया। यू अवेयर ऑफ ITC 04? देयर इज अ फॉर्म कॉल्ड ITC 04। मतलब क्या हुआ, आई एम अ प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, मैं चप्पल बनाता हूं, चप्पल में प्रिंटिंग होता है, तो प्रिंटिंग मैं नहीं करता हूं, मैं सामने वाला जॉब वर्कर को दे देता हूं। अंडर डिलीवरी चलान, सप्लाई नहीं हुआ, वो 1-2 महीना में प्रिंटिंग करके एम्ब्रॉयडरी करके वो चप्पल मेरे को वापस डिलीवरी चलान, आउटवर्ड डिलीवरी चलान से मेरे को वापस भेज देता है। तो 2 डिलीवरी चलान हुआ, एक डिलीवरी चलान बाय द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर टू जॉब वर्कर, एक हो गया फ्रॉम द जॉब वर्कर टू द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। ये सब रिकॉर्ड कहाँ रहता है, ये सब रिकॉर्ड हम लोग के पास भी तो रहता ही है, बट वी नीड टू फाइल ITC 04 फॉर्म। कब? फॉर दोज पीपल हु हैव मोर देन 5 crores टर्नओवर, इट इज ट्वाइस अ ईयर, जो आपका जो हाफ ईयर के 25 डेज के बाद में होता है, इफ आई कैन रिकॉल। और जिसका 5 crores के नीचे उसको एनुअली एक बार करना पड़ता, पहले ये हर क्वार्टर करना पड़ता था 2-3 साल पहले। उसमें क्या डाला जाता है कि आपका आउटवर्ड डिलीवरी चलान, जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर 100 यूनिट चप्पल दिया आपका किसको, जॉब वर्कर को, तो 100 यूनिट चप्पल कितना डिलीवरी चलान के नंबर पे गया है, हर डिलीवरी चलान में कितना क्वांटिटी गया है, क्या वैल्यू है उसका। और सेकंड साइड में क्या डालते हैं, जितना डिलीवरी चलान से मेरे को वापस मेरा माल मिला है, तो 100 माल गया है तो 100 ही तो मिलेगा ना, 100 नहीं मिला, सिर्फ 99 मिला, तो क्वेश्चन आप लोग उठाएंगे, सर ये एक है, आप जॉब वर्कर के वहां से बेच दियो क्या? जॉब वर्कर के प्रीमाइस से भी बिक सकता है, वी ऑल आर अवेयर, बट ही नीड्स टू बी रजिस्टर्ड एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो वहां पर बेच सकते हैं मेरा माल। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। आप मानिए कि आप बोलते हैं कि सर ये तो 1 यूनिट आया नहीं है, और कितना टाइम निकल गया है, 1 ईयर। 1 year has passed from the date I have supplied the goods for job working, and but it has not come back. It will be considered as a deemed sale. और अगर कैपिटल गुड्स करते हैं जॉब वर्किंग के लिए देते हैं तो 3 years है। तो ITC 04 अपने देख सकते हैं, आप लोग मांग भी सकते हैं ITC 04। तो जॉब वर्किंग स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेजर्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जर्नल वाउचर, ये सब तो है ही। आपका इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, समय मिलेगा तो वी विल एनालाइज ऑल ऑफ दिस। अच्छा, ये जीएसटी सुविधा थोड़ा सा लास्ट में करेंगे अपने, थ्योरेटिकल है। लेट अस गो टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ये देखिए, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एरियाज है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का एक एक एरिया का थोड़ा थोड़ा चीज अपने देखते हैं, हाउ टू रीड। ये जैसे कि एक पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका एक तो नोट है, नोट नंबर 22। ये सेल्स आपको डिस्क्राइब करता है। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ऊपर सेल्स आता है ना, तो उसका एक नोट्स भी होता है। तो ये नोट्स है,
इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब इसमें देखिए पढ़ करके आप देखिए कहां पर आप फोकस करेंगे, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। जीएसटी पर्सपेक्टिव से आप देखिए, थिंक फ्रॉम एन ऑफिसर्स जीएसटी पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इनका ड्यूटी ड्रॉबैक है इतना अमाउंट का, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है, सेल्स है एक्सेट्रा यहाँ पर। तो अपने तो सबसे पहले देखेंगे सेल्स है इतना, तो आउटपुट टैक्स पेमेंट हुआ है इतना क्या नहीं हुआ है, कौन कौन से 3B1 में हुआ है, रिकॉन्सिलिएशन करेंगे, बुक से करेंगे, वो सब तो ठीक है। बट वी आर सीइंग ड्यूटी ड्रॉबैक, वी आर सीइंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऑफ एफएमएस। एक्सपोर्ट इंसेंटिव अपने को पता क्या होता है, MEIS, SEIS। जैसे क्या होता है कि अगर हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं बाहर से, राइट, और उसमें अगर हम कुछ भी मानिए फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एग्जेम्प्ट है, हमारा इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट नहीं करते उसमें, हम बोलते हैं अगले 18 महीना में सर हम 5 गुना बना करके एक्सपोर्ट कर देंगे, तो एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG स्कीम्स और वो सब होता है। तो उसमें क्या होता है, इफ आई अचीव माई टारगेट, आई से आई एम गोइंग टू सेल 10 टाइम्स ऑफ द अमाउंट विच आई हैव इंपोर्टेड, तो मैं टारगेट रिसीव कर लिया, मेरे को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलता है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। और वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो होता है वो इंसेंटिव्स रहता है, वो क्या है, आप किन्हीं को बेच सकते हो, और वो आदमी क्यों खरीदेगा आपसे, वो इसीलिए खरीदेगा क्योंकि अब वो यूज करके जब इंपोर्ट करेगा कोई भी सामान को, तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज ट्रांसफरेबल, ये बेच सकते हैं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स पे अपना क्या बोलते हैं, ये देखिए, ये इतने सारे क्वेश्चंस आता है, ये अपने जब नोट देखते हैं तो वेदर कंपनी हैज एक्सपोर्ट्स, अपने यहां पर देखिए ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, तो अपने देखते हैं अच्छा एक्सपोर्ट किया है ये आदमी, अच्छा एक्सपोर्ट अगर किया है तो 10 सवाल क्या आता है मेरे दिमाग में, एक्सपोर्ट अगर किया है तो अच्छा एक्सपोर्ट किया है, माल किया है, ओके 3 महीना के अंदर में माल एक्सपोर्ट किया इनवॉइस के दिन में, वी नीड टू एक्सपोर्ट द गुड्स एक्चुअली विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, पता अपने को, राइट, अपने को ये पता है कि गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन रिजर्व्स आने का टाइम लिमिट वी नो, दैट इज इन केस ऑफ गुड्स इट इज 9 मंथ्स, इन केस ऑफ सर्विसेज इट इज 1 ईयर, राइट, ये सब आया है कि नहीं आया है। अच्छा एक्सपोर्ट किए तो रिफंड लिए है क्या, अच्छा रिफंड लिए तो किस पे लिए, विद पेमेंट ऑफ IGST और विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, विद पेमेंट ऑफ IGST में अगर किए हैं तो करेक्टली हुआ है क्या नहीं हुआ है, विदाउट पेमेंट ऑफ IGST अंडर LUT बॉन्ड में किए तो RFD 01 रिफंड एप्लीकेशन फाइल किए नहीं किए, फॉर्मूला ठीक से लगाए हैं क्या नहीं लगाए हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स कम अप, तो वो सब क्वेश्चंस अपने को देखना है। अब देखिए जैसे मैंने ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स आपको बताया, काफी एक्सपोर्टर के क्लाइंट्स लोग का आप लोग ये देखेंगे, ये प्रैक्टिकल केस है। अब ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स MEIS SEI जो मैंने आपको बोला, ये बेचा जा सकता है, जो आदमी खरीदेगा उसके लिए पैसा देगा और वो यूज करके सामने वाला इंपोर्ट कर सकता है ड्यूटी फ्री, इंपोर्ट ड्यूटी BCD पेमेंट नहीं करना पड़ेगा अगला को, राइट। तो अब ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स है, इट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, राइट, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई माना जाता है। ये कहां पर आपका है एग्जेम्प्ट सप्लाई, आपका जो नोटिफिकेशन आपका 12/2017 है, जो मास्टर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है, उसमें आपका ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है। लेकिन अब मेरे को एक चीज बताइए, जब एग्जेम्प्ट सप्लाई मैं बोलता हूं, दिस इज अ नोटिस, रियल लाइफ नोटिस, अटैचमेंट है ASMT 10 का स्क्रूटनी नोटिस और DRC 01A इंटीमेशन का, इसमें क्या होता है सर, कैन एनीवन टेल मी इफ एनी पर्सन क्लाइंट इज डूइंग 100 रुपीज ऑफ सेल ऑफ टैक्सेबल एंड 10 रुपीज ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो उसको कुछ करना पड़ता है इनपुट के संबंध में, एग्जैक्टली कितना रिवर्स करना पड़ेगा सर, एग्जैक्टली कॉमन क्रेडिट, वो आपका रूल है 42-43। अब उसमें क्या होता है, सर ने क्या बोला, जितना एग्जेम्प्ट सप्लाई 10 रुपया, टोटल एडजस्टेड टर्नओवर 110 रुपया इनटू कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट मतलब क्या हुआ, जो आपका स्पेसिफिक टू आपका टैक्सेबल सप्लाई है वो हट जाता है, स्पेसिफिक टू आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो भी हट जाता है। जो आपका कॉमन क्रेडिट है, फॉर एग्जांपल की फैक्ट्री का रेंट है, वो आपका वो माल के लिए भी यूज होता है, टैक्सेबल के लिए, इसके लिए भी, तो कॉमन क्रेडिट्स कैलकुलेट करना पड़ता है, उसका प्रोपोर्शनेट 10 डिवाइडेड बाय 110 हम परसेंटेज निकाल के रिवर्स करेंगे, फॉर्मूला होता है। अब 42-43 में अब क्या है, यहाँ पर जब मैं ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स बेचता हूं 10 रुपया का, तो कहां पर मेरे को रिपोर्ट करना है, GSTR 1 में, एग्जेम्प्ट सप्लाई में, जहां कहां पर 3B में कहा करना है, एग्जेम्प्ट सप्लाई में करना है। टेबल 3.1 C में है, शायद C है शायद मेरे हिसाब से, एग्जेम्प्ट सप्लाई है। B आपका एक्सपोर्ट है, D आपका RCM है, A आपका टैक्सेबल है, तो C होएगा मेरे हिसाब से, राइट। तो वो एग्जाम सप्लाई में वहां पर रिपोर्ट करने, जैसे मैं 1 और 3 में रिपोर्ट कर लेता हूं, आप लोग नोटिस इशू कर देते हैं अगर मैं रिवर्स नहीं किया हूं इनपुट। लेकिन फॉर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स इसके लिए एक एक्सेप्शन है, रिवर्सल नहीं मांगता है, बिकॉज आपका रूल 42-43 में 2 ऐसे केसेस है एग्जाम सप्लाई के, इतने सारे एग्जाम सप्लाईज है सर्विसेज के, 2 ऐसे केसेस है जहां पर रिवर्सल नहीं करना है। पहला केस क्या है, इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट, उसको एग्जाम सप्लाई मानेंगे,
एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो आपका डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसमें ऐड होएगा एग्जाम सप्लाई, 20 लाख से ऊपर में काउंट होएगा वो, लेकिन रिवर्सल के लिए नहीं माना जाएगा। वैसे ही करके जैसे फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट एक्सेट्रा, बैंक इंटरेस्ट, अनसिक्योर्ड लोन पे इंटरेस्ट है, उसको एग्जाम सप्लाई मान के रिवर्सल नहीं करना है 42-43 में। वैसे ही ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स अगर आप बेच रहे हो 10 रुपया डिवाइडेड बाई 110 तो रिवर्सल नहीं करना है। ये बहुत जन लोग जानते नहीं है। और ये आपका नोटिस में आता है सर, ये तो आपका नोटिस रियल लाइफ नोटिस है, मैं दिखा रहा हूं, ये तो रियल लाइफ नोटिस है। सप्लाईज मेड ऑफ 0% बट शोन अंडर टैक्सेबल सप्लाई, ये आपका 19,000 पकड़ लिया आपका ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स का फॉर एग्जांपल। तो इन लोग क्या करते हैं 19,000 डिवाइडेड बाई 11 करोड़ 67 लाख, ये आपका हो गया 0.02%। और कॉमन क्रेडिट वेट इनको कुछ नहीं पता, जितना 2A में आया सब पकड़ करके बोलते थे कॉमन क्रेडिट है, तो गलत है ना। बोलेंगे आप इतना रिवर्स करिए 2005 500। तो ये आपका रियल लाइफ केसेस है। अच्छा, वी नो अपने कल डिस्कस किए थे जब अपना कोई भी पैन एक हुआ एंड डिफरेंट स्टेट्स में, जहां पर डिफरेंट स्टेट्स में रजिस्ट्रेशंस है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है बट इट हैज द सेम पैन। मैं अगर बंगाल से माल ट्रांसफर कर रहा हूं इंटर ब्रांच इन उड़ीसा, तो मेरे को टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा कि नहीं करना होगा? इशू करना होगा। और सामने वाला इनपुट क्लेम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा, राइट। अब मानिए कि सेम चीज मैं सर्विस के लिए करता हूं ना सर, मेरा हेड ऑफिस है, मैं पूरा इंडिया का 7-8 मेरा जो ब्रांच जो है उसका अकाउंटिंग करवाता हूं, तो अकाउंटेंट का खर्चा तो मैं देता हूं ना, हेड ऑफिस जो है, तो बाकी सबका मैं खर्चा देता हूं। क्या फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब कि आपको कोई भी टेक्निकल कंसल्टेंसी दे रहा हूं, मैं बंगाल में रजिस्ट्रेशन, मेरा ही रजिस्ट्रेशन है, पैन सेम है, तो मैं आपको कुछ तो चार्ज करूंगा क्योंकि मेरा खर्चा है यहाँ पर, कुछ तो पेमेंट तो आप तो कुछ तो दोगे, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस चार्ज। वी नो दिस, क्रॉस चार्ज, राइट। क्रॉस चार्ज मतलब क्या हुआ, मैं हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस के ऊपर में इनवॉइस रेज कर रहा हूं, कितना? अकाउंटेंट का 30,000 का सैलरी है, 12 महीना 3,60,000, मेरा 6 ब्रांच है, तो 60,000 करके मैं इनवॉइस इशू कर देता हूं। ईयरली मतलब महीना का 5,000 रुपया, 5,000 रुपया फॉर ईच ब्रांच, समझ में आया? तो इसको क्रॉस चार्ज बोलते हैं। अब सर आप मेरे को बोलेंगे सर प्रॉब्लम है सर, 5,000 आप इसमें चार्ज करेंगे, 5,000 पे 18% आप टैक्स चार्ज करेंगे, सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो ना, इन अ वे क्रॉस चार्ज कर रहे हो। दैट हेड ऑफिस इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू ईच ब्रांच ऑफिस इन ईच डिफरेंट स्टेट। तो 5,000 का 18%, तो क्या हो गया, उनको टैक्स मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, तो उनका इनपुट ब्लॉक हो गया। इनपुट ब्लॉक मतलब इनपुट हो गया ना वो, अब वो उनको रिफंड लेना है कि वो अपना सेल करेंगे जो भी चीज है। अब इसमें एक राहत है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें एक राहत है। ये देखिए, अभी आपका क्या है, मानिए फॉर एग्जांपल मैं कुछ चार्ज नहीं करता हूं, ये आपका क्या है, आर वी अवेयर ऑफ शेड्यूल 1? शेड्यूल 1 सुनिए अपने, क्या होता है शेड्यूल 1 सुनिए सर। शेड्यूल 1 में क्या बोलते हैं सर कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, ब्रांच और हेड ऑफिस रिलेटेड पर्सन है ना, डिस्टिंक्ट पर्सन है, अरे सेम पैन में अलग जीएसटीएन है, तो कुछ भी सर्विस दे रहे हैं, अगर उसमें कोई पैसा भी नहीं लेते, 5,000 करके मैं नहीं लेता हूं, तभी भी हम मानेंगे कि आपने सर्विस दिया है और आप जीएसटी पेमेंट करिए, हेड ऑफिस को बोल रहे हैं, ये राइट। ये आपका शेड्यूल 1 बोलता है सर, मैं नहीं बोल रहा हूं। और सेक्शन 7(1)(c) बोलता है, क्या बोलता है? एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, ब्रांच हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को सर्विस दे रहा है, बैक ऑफिस सर्विस, और कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है, तो बोलता है क्या, शेड्यूल 1 रेड विद सेक्शन 7(1)(c) कि आपने विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई दिया है, तो आप इसका ओपन मार्केट वैल्यू जो आपका है उस पे आप चार्ज करके जीएसटी पैसा पेमेंट करिए। ओपन मार्केट वैल्यू, ये क्या हो गया, वैल्यूएशन रूल 28 सब रूल 1। ओपन मार्केट वैल्यू अकाउंटेंट का, बैक ऑफिस का, सिमिलर कंपनीज का हम देखेंगे, अच्छा महीना का 5,000 है, महीना का 10,000 है, गवर्नमेंट। अब क्या इससे क्या होगा सर, नेट ट्रांजैक्शन पैन में तो 0 है, जब आईटीआर फाइल करूंगा मेरे पास 3,60,000 का इनकम आ रहा है, और मेरे सब ब्रांचेस जब मेरे में मर्ज होकर के जब मैं आईटीआर फाइल करूंगा तो 3,60,000 का खर्चा है, 3,60,000 का इनकम है, तो खर्चा इनकम क्रॉस हो गया, राइट। इनपुट इतना का इतना आउटपुट है, क्रॉस हो गया। तो इससे प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स क्या होती है कि सेम पैन में आप सिर्फ इनपुट बना रहे हो और आउटपुट पेमेंट कर रहे हो, तो दिस इज नॉट इफेक्टिव टैक्सेशन, ये तो रेवेन्यू न्यूट्रल है। तो इन लोग क्या बोले, सर आपको ये ओपन मार्केट वैल्यू ये सब चीज कुछ करने का दरकार नहीं है, आपको हम एक टैक्स प्लानिंग देते हैं जो हम लोग के लिए। क्या टैक्स प्लानिंग है, अगर आपका ब्रांच ऑफिस उड़ीसा में 100% एलिजिबल है टू क्लेम इनपुट, वापस से सुनिए,
अगर ब्रांच ऑफिस उड़ीसा में 100% एलिजिबल है टू क्लेम इनपुट, देन आप 1 रुपया का भी बिल इशू कर सकते हैं। आप बिल भी इशू नहीं करेंगे तभी भी चलेगा क्रॉस चार्ज में। तो इट विल बी क्या माना जाएगा, इट विल बी डीम्ड टू बी ओपन मार्केट वैल्यू। एनी अमाउंट मेंशन्ड, मैं वापस से बोल रहा हूं, एनी अमाउंट मेंशन्ड इन एन इनवॉइस by a head office to a branch office, both are related parties, even if whatever amount is charged in the invoice for supply of services, that will be deemed to be the open market value as per second proviso to rule 28(1). क्या बोलता है, provided further that where the recipient branch office is eligible for full input tax credit, कोई भी म्यूचुअल फंड बेचता नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बेचता नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो एग्जाम सप्लाई में उसका सेल में आता है, तो वो 100% इनपुट क्लेम अगर कर सकता है तो मेरे पास में हेड ऑफिस के पास में हथकंडा है कि वो अगर इनवॉइस भी इशू नहीं करे तभी भी उसको डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू नील माना जाएगा। मतलब कि आप लोग कुछ भी उसमें हमारे ऊपर में कोई भी मुकदमा नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग राहत जो हमें मिला है। ये सर्कुलर 218/12/2024 ये आपका पिछले साल का है, ये पिछले साल का है आपका। ये देखिए सर्कुलर 199/11/2023 ये मास्टर सर्कुलर है फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्रॉस चार्ज मास्टर सर्कुलर। उसमें क्या बोला हुआ है, सेम चीज, ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस और branch office recipient is eligible to claim 100% input tax credit. Any amount charged or if not charged, if not billed also by the head office, it will be considered as deemed nil and open market value. तो मेरे को कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब सर आप ये तो डोमेस्टिक बता दिए हो, मेरा तो फॉरेन कंपनी है, मैं तो सब्सिडरी होल्ली ओन सब्सिडरी हूं इंडिया में। फॉरेन कंपनी मेरे को कोई टेक्नोलॉजिकल कुछ भी मेरे को देता है, आईपीआर, कॉपीराइट, कुछ भी, उसको मेरे को रॉयल्टी पेमेंट करना है। तो इंपोर्ट और सर्विस हो गया, कल डिस्कस किए थे ना ये वाला। इंपोर्ट और सर्विस में क्या अपने को करना है, आरसीएम पेमेंट करना है। एंट्री नंबर 1 नोटिफिकेशन 10/2017 आईजीएसटी रेट नोटिफिकेशन। अब उसमें सर आप बोलेंगे सर ये तो मेरा ही है, ये तो मेरे पेरेंट कंपनी है और मैं सब्सिडरी हूं, मिलना तो उन्हीं में है मेरे को। तो वो बोलेंगे अब ये राहत आ गया आपका, ये सेम नोटिफिकेशन जो आपका है सर्कुलर 210 नोटिफिकेशन सर्कुलर 210/4, इसमें बोलते हैं सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे राहत नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे भी मैं राहत दे रहा हूं। अगर आप जो इंडियन में जो रेसिपिएंट हो, जो आपका सब्सिडरी कंपनी है, इफ ही इज एलिजिबल फॉर 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेमिंग, तब आप क्या करोगे, आप जो सेल्फ इनवॉइस इशू करोगे अंडर आरसीएम, सेल्फ इनवॉइस इशू होगा ना, बाहर का आदमी जो सर्विस दे रहा है वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, मेरे को आरसीएम में पेमेंट करना है, तो सेल्फ इनवॉइस तो क्रिएट करना पड़ेगा 31(3)(f) में, कल डिस्कस किए थे। आप उसको 1 रुपया भी डाल सकते हैं। आप अगर इशू भी नहीं करोगे इनवॉइस तभी भी कोई इशू नहीं है उसमें। आप अगर आरसीएम पेमेंट भी नहीं करते हो तभी भी कोई इशू नहीं है उसमें। इंपोर्ट और सर्विस में between related persons, if I can prove to the department that I am 100% eligible to claim input, तो आप लोग अगर जब खाता देखेंगे वो अच्छा, आप यहाँ पर खर्चा आपका है, फॉरेन का वहां से ट्रांसफर्स आए, आप लोग ट्रांसफर अगर बाहर की कंपनी जो फॉरेन कंपनी है यहाँ पर आता तो क्या सोचते हैं, एक तो लोन एडवांस हो सकता है, एक तो कुछ चीज, अगला रीइंबर्समेंट्स हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उस पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या नेचर का है। अगर इफ इट इज अ ट्रांसफर इन द नेचर ऑफ व्हाट, एनी अमाउंट व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड, कोई भी सर्विस लिया गया, अगर फॉरेन कंपनी सर्विस दे रही है, मैं अगर पेमेंट कर रहा हूं फॉरेन कंपनी को, तो आउटवर्ड रेमिटेंस है, तो उसमें अगर मैं 100% क्लेम कर सकता हूं इनपुट, तो आई कैन टेक द बेनिफिट ऑफ सेकंड प्रोविजो टू रूल 28 सब रूल 1 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में। तो आप शेड्यूल 1 का हवाला नहीं दे पाओगे, सेक्शन 7(1)(c) का हवाला नहीं दे पाओगे आप कि सर ये तो आपका शेड्यूल 1 में बोलते हैं रिलेटेड पार्टी, कोई कंसिडरेशन नहीं है, आप पैसा निकालिए। वैल्यूएशन रूल में राहत दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये पॉइंट से उठेगा कॉर्पोरेट गारंटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉर्पोरेट गारंटी का मतलब क्या हुआ सर, 100 करोड़ रुपया बच्चा को चाहिए सब्सिडरी को, सब्सिडरी का सिविल रेटिंग क्रेडिट रेटिंग है B+, वो जाएगा अपने पेरेंट के पास में जो 10,000 करोड़ का कंपनी है। वो पेरेंट को बोलेगा सर मेरे को तो बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, तो आप बैंक से जाकर के बात करिए कि मेरे को लोन दे दे वो। तो जैसे पेरेंट जाएगा बैंक के पास, तो बैंक तो बोलेगा अरे सर आपका A+ सिविल रेटिंग है, आपको कहां किसको पैसा देना है, हम आज पैसा उसको ट्रांसफर करते हैं। तो बोले सर मेरी सब्सिडरी को आप दे दीजिए। वो बोलेंगे सर बैंक गारंटी एक तो दे दीजिए, कॉर्पोरेट गारंटी एक दे दीजिए। कॉर्पोरेट गारंटी मतलब क्या हुआ, कल अगर आपका बच्चा जो सब्सिडरी है 100 करोड़ पेमेंट नहीं कर पाए तो पेरेंट कंपनी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो हो गया कॉर्पोरेट गारंटी। कॉर्पोरेट गारंटी का मतलब क्या हो सर,
हर डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर अभी पिछले साल के 1.5 साल पहले तक, अक्टूबर 23 के पहले तक सब लोग नोटिस इशू कर रहे हैं। क्या इशू कर रही है? बोल रहे हैं कि ये तो नोशनल सर्विस हो गया। सर्विस का मतलब क्या हो गया? बुक्स में कोई एंट्री नहीं है इसका, सिर्फ नीचे में नोट्स टू अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं ना कंटिंजेंट लायबिलिटी, कॉर्पोरेट गारंटी, बैंक गारंटी सब दिखाते हैं, राइट। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या हुआ? पेरेंट कंपनी नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाएगा ना 100 करोड़ का। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या हुआ? किसी और के एक्शन की वजह से अगर मेरे को कल पैसा देना पड़ जाए तो मेरे जो इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनको डिस्क्लोज तो करना होगा। तो ये लायबिलिटी में नहीं आता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स रहता है, राइट। उसको जब आप पढ़ेंगे तो अच्छा कॉर्पोरेट गारंटी है, अच्छा कॉर्पोरेट गारंटी है, ठीक है। देखो अब हम क्या करते हैं, ऑफिसर लोग आप लोग बोल रहे हैं। अब कॉर्पोरेट गारंटी में क्या होता है सर? एक नोशनल सर्विस आप लोग बोलते हैं सर, नोशनल सर्विस है। क्या है? वैल्यूएशन रूल, रूल 28 सब रूल 2 अभी डिस्कस कर रहे थे। 28 सब रूल 1, ये सब 28 सब रूल 1 हो रहा था। 28 सब रूल 1 था, ये 2 है। ये अभी 1.5 साल पहले निकला आपका। ऐसे तो पहले से है, वैल्यूएशन रूल में जो जो चेंजेस आए हैं वो अभी 1.5 साल पहले आए हैं। ये क्या बोलते हैं आपके कॉर्पोरेट गारंटी में? क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि सर नोशनल सर्विस है, हेड ऑफिस आपका, जो हेड ऑफिस मतलब कि जो आपका पेरेंट कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी को एक तो सर्विस दे रहा है ना। क्या सर्विस दे रहा है? कॉर्पोरेट गारंटी का, बैंक को आपके बिहाफ में, तो उसके लिए पैसा निकालो। तो वो बोलते हैं कि सर पैसा तो कुछ नहीं है। अरे बच्चा पापा को पैसा थोड़ी देगा अपना, सब्सिडरी पैसा क्यों देगा पेरेंट को? तो बोलेगा नहीं हमको सब पता नहीं है, आप क्या करिए 1% ऑफ दी कॉर्पोरेट गारंटी अमाउंट, 100 करोड़ का 1% मैं मानूंगा आपका फीस है। तो 1 करोड़ रुपया का फीस है कॉर्पोरेट गारंटी सर्विस देने के लिए। तो पेरेंट कंपनी के नाम पे 1 करोड़ रुपया का दिखा दिए कि वो सप्लाई कर रही है सर्विस टू दी सब्सिडरी कंपनी, और 1 करोड़ के ऊपर में 18% टैक्स, 18 लाख रुपया उसको पेमेंट करना पड़ेगा। किसको? पेरेंट कंपनी को। ये पॉइंट समझ में आया? अब हर बार कॉर्पोरेट गारंटी होएगा 100 करोड़ 100 करोड़ अलग अलग जो भी चीज है, तो हम 18 लाख पेमेंट करते जाए क्या? ये तो आपका डीम्ड सप्लाई इन अ वे हो गया ना। तो इसके लिए भी राहत आ गया, सेम राहत। क्या राहत आया सर 28(2) में? क्या राहत आया? ये वाला देखिए, ये राहत आया आपका। पहला तो चीज है, हम मानेंगे अगर कोई भी ट्रांसफर हुआ नहीं है कॉर्पोरेट गारंटी का सर्विस के लिए पैसा, तो मानेंगे 1% डीम्ड मानेंगे, जितना कॉर्पोरेट गारंटी का अमाउंट है। या तो वो अमाउंट, या तो एक्चुअल कंसिडरेशन, मानिए कि 100 करोड़ पे एक्चुअल में वो पेमेंट कर रहे हैं 2 करोड़ जो सब्सिडरी कंपनी पेरेंट कंपनी को, तो 100 करोड़ का 1% क्या हो गया? 1 करोड़, और 2 करोड़ जो एक्चुअल कंसिडरेशन है, व्हिचएवर इज हायर, और उसके ऊपर में पेरेंट कंपनी को 2 करोड़ के ऊपर में 18%, 36 लाख रुपया पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स गवर्नमेंट को। लेकिन वो पैसा बचा सकता है। कैसे पैसा बचाएगा? सेम प्रिंसिपल। वो बोलेगा अच्छा सब्सिडरी कंपनी, आर यू एलिजिबल टू क्लेम 100% इनपुट टैक्स क्रेडिट? आप कोई एग्जाम अप्लाई कर रहे हो? नहीं सर, हम 100% क्लेम कर सकते हैं इनपुट। तो सर मैं क्या करूंगा? पेरेंट कंपनी, मैं आपको एक इनवॉइस इशू कर दूंगा 1 रुपया का, and that will be considered, deemed to be considered as open market value for corporate guarantee services given to financial institutions and banks on behalf of a related enterprise. कंसेप्ट समझ में आया ये चीज? 100% सर ये कि आप बुक्स में देखिए वो कि कोई भी एग्जाम अप्लाई नहीं कर रहा है, उसका टोटल एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में कोई भी एग्जाम अप्लाई नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कि कोई भी ब्लॉक ऐसा करके कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, आप समझ लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी अगर बेच रहे हो, कि आप अगर मानिए कि रियल एस्टेट कंपनी है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो उन लोग के ऊपर में बंदिश रहता है कि हम इतना इनपुट क्लेम नहीं कर पाएंगे। कि फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट है, 5% में वो बोलता है कि नहीं हम कुछ इनपुट क्लेम नहीं करेंगे, हम सिर्फ 5% में टैक्स पेमेंट करेंगे, तो इज ही एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट 100%? नो। तो वो केस में कॉर्पोरेट गारंटी नहीं हो सकता, मतलब कॉर्पोरेट गारंटी का ये बेनिफिट नहीं ले पाएंगे अपने। तो उसमें क्या होएगा सर? 2 करोड़ पे 18% पेरेंट कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, और सामने वाला आदमी क्या करेगा? उसको इनपुट क्लेम कर सकता है। ये पॉइंट समझ में आ गया? ये वाला चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपने को समझने के लिए। इसको बोलते हैं सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसका सर्कुलर्स भी निकला है, सब अमेंडमेंट्स है लास्ट 1 ईयर के। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं सर? ये ऐसे कोई हवा का चीज नहीं है। ये आप जब बैलेंस शीट पढ़ोगे, नीचे में कंटिंजेंट लायबिलिटी में आप देखोगे कॉर्पोरेट गारंटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो कैसे पढ़ना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगाना है आपको, कहां दिशा में जाना है, वो सब आपको ये बताएगा। अच्छा यहां पर लेट अस सी दिस। अच्छा मैंने कोई प्लांट मशीनरी खरीदा, प्लांट मशीनरी में बेचता हूं। ये एग्जांपल देखिए, X sold his plant and machinery for 1,44,550। ये आपका इंक्लूसिव ऑफ GST
जीएसटी 22,050 रुपया इंक्लूड करके 1,44,550 है। कब बेचा है? 10 मई 2019। परचेज कब किया है? 1 जुलाई 2017। कितना में? 2,36,000 और 36,000 इंक्लूडेड है। अब ये क्या है, मैं इसको बेचना चाहता हूं तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या बोलता है? अगर आप कोई भी कैपिटल गुड्स प्लांट मशीनरी बेचते हो तो उसका एक वैल्यूएशन रूल है। वैल्यूएशन रूल क्या है? 2 वैल्यूएशन रूल है और दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है एक दूसरे से। एक है रूल 40 सब रूल 2, दूसरा है रूल 44 सब रूल 6 रेड विद रूल 44 सब रूल 1 क्लॉज बी। ठीक है, इसका अभी कैलकुलेशन अपने देखेंगे। तो अभी देखिए, बात समझिए। पहला सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? सिंपल एग्जांपल देखिए ना, ये आपका 1,22,000 रुपया का मशीन बेचा है, 22,000 रुपया जीएसटी आउटपुट टैक्स इसका है। तो ये बोलता है कि अच्छा, पहला चीज है एन अमाउंट इक्वल टू आउटपुट टैक्स। मशीन जब बेच रही है 100 रुपया का तो 18 रुपया उसके ऊपर में आउटपुट टैक्स है आपका। या तो वो अमाउंट आप पेमेंट करिए या तो दूसरा अमाउंट क्या है, आप मशीन को कितना दिन यूज किए। अच्छा, जीएसटी में प्लांट मशीनरी कैपिटल गुड्स का लाइफ क्या मानते हैं अपने? 60 मंथ। वेरी नाइस। 60 मंथ्स और 5 इयर्स दोनों अलग है। इसमें हमने देखेंगे इसमें या तो 20 क्वार्टर्स हुआ कि कितना क्वार्टर्स हुआ? 60 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया आपका? 15 क्वार्टर्स। ठीक है, तो अभी अपने देखेंगे कैलकुलेशन में। ये दूसरा वाला क्या बोलता है, छोटा सा इसके अंदर ही एग्जांपल लेता हूं। 5 साल आप बोले तो 60 महीना तक मेरे को कैपिटल गुड यूज करना है, लेकिन मैं इनपुट कब क्लेम किया? 100% पहला दिन ही क्लेम कर लिया। अरे कोई बंदिश है क्या इसमें? नहीं है ना। अपने को याद रहेगा उस टाइम वैट क्या, उस टाइम में अपना क्या था? 50% सेंट्रल एक्साइज, 50% इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन, 50% ऑफ एडिशनल अपने नेक्स्ट ईयर लेते थे, राइट? कुछ ऐसा याद आ रहा है? अभी इसमें कुछ नहीं है जीएसटी में, 100% पहला दिन। लेकिन मैं पहला दिन ही 100% खा गया इनपुट और उसको 5 साल यूज ही नहीं किया। उसको सिर्फ यूज किया मैं कितना? 23 मंथ्स फॉर एग्जाम्पल। 2 साल के अंदर में बेच दिया उसको। तो गवर्नमेंट बोलता है अच्छा, 5 साल के हिसाब से आपने तो पूरा इनपुट पहला ही दिन ही आपने खा लिया। तो 37 मंथ जो अनवेस्टेड पीरियड है उसका प्रोपोर्शनेट इनपुट आप कैलकुलेट करिए और उसको रिवर्स करिए। कंसेप्ट समझ में आया? एग्जांपल में देखेंगे। ये देखिए, नीचे वाला क्या है? अमाउंट ऑफ आईटीसी व्हिचएवर इज हायर। ऊपर वाला तो क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे आउटपुट टैक्स। नीचे क्या है? अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज रिड्यूस्ड बाय सच परसेंटेज पॉइंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, पहला रूल क्या है अपने? इसमें कितना, इसमें क्वार्टर्स के हिसाब से होगा। कितना क्वार्टर है? 15 क्वार्टर है टोटल। ये कब बेचा गया है? कब खरीदे थे अपने? जुलाई 17 में। बेचा कब गया अपना? मई 2019। तो कितना क्वार्टर यूज हुआ है? कितना? 1 साल 10 महीना 10 दिन। तो 10 दिन भी मानते हैं पार्ट ऑफ द मंथ क्या क्वार्टर। तो कितना क्वार्टर यूज हो गया? 1 साल 12 आपका ये क्वार्टर्स कितना हो गया? 1 साल में 4 क्वार्टर, 10 महीना 10 दिन में कितना क्वार्टर? वापस से 4 क्वार्टर। अरे भाई 3 क्वार्टर 9 महीना होता है, चौथा क्वार्टर के बीच में हो गया ना ये सब। तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी तो क्वार्टर मानेंगे ना। तो 8 क्वार्टर हो गया ना आपका। 8 क्वार्टर यूज किए हैं, वेस्टेड पीरियड है। और हम बोलते हैं हर क्वार्टर पे 5 परसेंटेज पॉइंट हम उसको देंगे जितना आप यूज किए। तो 100% इनपुट में से 40% आप लीगली, मतलब कि आपका अलाउड है, आप इनपुट क्लेम आज तक कर सकते हो। क्लेम तो ऐसे 100% कर सकते हो, लेकिन 40% तक आपने एज पर द लाइफ ऑफ द एसेट आपने 40% ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट का इनपुट यूज किया है। तो रिमेनिंग 60% आज आप रिवर्स करिए। टोटल इनपुट कितना था? 36,000 था ना जब खरीदे थे, 36,000 का इनपुट था। तो 36,000 माइनस 40% ऑफ 36,000 मतलब 60% जो अनवेस्टेड पीरियड का है, रिमेनिंग पीरियड कितना अमाउंट आता है? 21,600। और ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स कितना आ रहा था? 22,050। व्हिचएवर इज हायर, कौन सा हायर है? 22,050 की 21,600, 22,050। तो 22,050 मैंने पेमेंट करूंगा आउटपुट टैक्स। अच्छा, 22,050 आउटपुट टैक्स पेमेंट होएगा तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होएगा? टैक्सेबल वैल्यू क्या होएगा आपका? ये वाला ही होएगा, ये वाला ही होएगा ना। अब मानिए सेकंड वाला ये वाला देखते हैं। एज पर ये दूसरा रूल है, ये आपका क्वार्टर के हिसाब से, ये मंथ के हिसाब से, लेकिन तभी दोनों में फर्क आता है आपका। ये आपका रूल 44(6) रेड विद रूल 44(1) भी है। कितना महीना यूज हुआ? कितना साल? ये 12 महीना, ये 10 महीना और ये 10 दिन। तो 11 महीना 12 महीना टोटल 23 महीना। टोटल कितना? 60 महीना सर आपने कहा था। 60 माइनस 23, 37 मंथ्स अनवेस्टेड। 37 मंथ्स का 36,000, ये आपका 22,200 रुपया अनवेस्टेड पीरियड का है जो अभी तक मैंने यूज ही नहीं किया, बेच दिया उसके पहले। तो इतना रिवर्स करो, या तो ये रिवर्स करो या तो 22,050 जो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे आउटपुट टैक्स व्हिचएवर इज हायर। कौन सा हायर है? 22,022। अब ये रिवर्सल ऑफ इनपुट वाला आ गया, लेकिन हम एक्चुअल में रिवर्स नहीं करेंगे इनपुट, हम पेमेंट करेंगे 3.1A में। टैक्सेबल वैल्यू क्या होएगा? टैक्सेबल वैल्यू 144 होएगा
या तो इसका डिवाइडेड बाय 18% होएगा। सर टैक्सेबल वैल्यू कुछ और हो सकता है, टैक्स अमाउंट कुछ और हो सकता है, तो गलत है ना, ये तो टैक्स अमाउंट ही चेंज हो गया है, तो डिवाइडेड बाय 18% ग्रॉस अप करके टैक्सेबल वैल्यू चेंज हो गया आपका। इनपुट कितना का मिलेगा? जितना पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट कितना कर रहा हूं, पेमेंट कितना कर रहा हूं, जो अमाउंट पेमेंट कर रहा हूं वो अमाउंट का इनपुट मिल जाएगा। इसमें यहां पर आपका इतना अमाउंट आप चार्ज कर रहे हो, इतना अमाउंट इनपुट मिल जाएगा, यहां पर दूसरा अमाउंट चार्ज कर रहे हो, इनपुट मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, हम लोग के लिए क्या है, विच एवर इज हायर डिपार्टमेंटली, विच एवर इज लोअर असेसी के लिए, लॉजिक है ये चीज में। लेकिन ये कितने जन लोग जानते भी है कि यहां पर भी चेक कर सकते हैं अपने डबल कौन सा हायर है। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, शैल वी कंटिन्यू? अच्छा, अपने डिस्कस किया अभी प्लांट एंड मशीनरी को बेचने के टाइम में वैल्यूएशन रूल क्या लगता है, तो जिससे कि पीएल के जब क्रेडिट साइड में देखते हैं अपने कि प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, या तो डेबिट साइड में देखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो वैल्यूएशन रूल अपने को लगाना होगा। गाड़ी व्हेन वी सेल कार्स, इसका अलग वैल्यूएशन रूल है। अभी देखिए, दिस अमेंडमेंट हैज हैपेंड इन द 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 21 दिसंबर 2024 जैसलमेर में जो हुआ था। पहले क्या था सर, स्लैब गाड़ी का ये था टैक्स रेट, या 18, ये आपका 12 था छोटी गाड़ी में। छोटी गाड़ी मतलब जैसे कि आपके i20 हो गए, मतलब कि 4000 mm 4 मीटर के 4 फुट के आपके 1500 सीसी नहीं 1200 सीसी, ये देखिए 12% का आपका हो गया। पेट्रोल कार विथ लेस देन 1200 सीसी इंजन कैपेसिटी एंड लेस देन 4000 mm, मतलब कि आपके 4 मीटर या 4 फुट जो भी होता है, 4 आपका mm है तो आपका ये तो मीटर होगा ना मेरे हिसाब से, 4 मीटर या तो 1200 सीसी इंजन कैपेसिटी हो, छोटी गाड़ी जेन हो गए, वैगनर हो गए, i10 हो गए, i20 हो गए, स्विफ्ट हो गए, ये सब आपके छोटे कार्स है। तो वो अगर यूज्ड कार्स अगर हम बेचे, इफ वी सेल यूज्ड कार्स, सो द टैक्स रेट वाज 12%. It is still 12%, it has not been notified yet, but an announcement has already been made that this 12% will be scrapped and all cars, used cars, when they are sold, including EVs, electric vehicles. अपने जैसे बोलते हैं सर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बजट में क्या आया है, आप लोग जैसे कि कस्टम में टैरिफ कम होता है, जो लिथियम बैटरीज इंपोर्ट करते हैं, पोल्यूशन कम करते हैं, तो वो सब राहत है, बट ये तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पहले यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 12% तो 18% कर दिया, तो सब गाड़ी पे 18% कर दिए, यूज्ड कार्स का मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन सर ये 18% विल नॉट बी ऑन द सेल वैल्यू। सेल वैल्यू 6 लाख है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू है मेरा 4 लाख। मानिए कि मेरा डेप्रिशिएटेड वैल्यू मतलब क्या, वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत, कंपनीज एक्ट के तहत नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के तहत। इनकम टैक्स एक्ट में आपका गाड़ी का डेप्रिसिएशन पर ईयर क्या मिलता है, 15% प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से, तो 15% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV जो बोलते हैं अपने। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपया में गाड़ी खरीदे पहला साल और 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है गाड़ी, तो 15 रुपया डेप्रिसिएशन मिल गया खर्चा, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस क्या हो गया 85 पे 15%, तो नेक्स्ट ईयर का क्या हो गया आपका 13.5 का, जो भी 12-12.5 रुपए, ऐसे कर करके करंट WDV वैल्यू वो है डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेंगे। तो पॉजिटिव मार्जिन अगर आए या प्रॉफिट हो तभी ये 18% लगेगा। अगर ये नेगेटिव हो, बेच रहे हैं हम 1 लाख रुपया में, एकदम स्क्रैप टाइप का गाड़ी है, गाड़ी में कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ बॉडी है, और मैंने मेरा बुक्स में डेप्रिशिएटेड वैल्यू अभी भी 2.5 लाख है, तो 1.5 लाख का तो नेगेटिव मार्जिन, दैट इज लॉस, तो देयर विल बी नो टैक्स ऑन दैट, राइट। तो ये अपना गाड़ी का था। तो ये अपने को अज्यूम करना होगा ऑब्वियसली नो इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड अगेंस्ट कार इवन इन द वैट टाइम एंड इवन इन द जीएसटी टाइम। उस टाइम भी कोई भी जीएसटी इनपुट ये गाड़ी पे लेते नहीं थे, आज भी नहीं लेते हैं। अच्छा, ये आपका गाड़ी का हो गया। दूसरा है, अब देखिए ये आपका बैलेंस शीट के नोट्स है, ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। अब इसको सर थोड़ा सा पढ़िए, इसको थोड़ा सा पढ़िए, ये एरिया पढ़िए। ये सब रिलेटेड पार्टी है सर। कंपनी के रिलेटेड पार्टी मतलब कौन हो गए, डायरेक्टर। सिटिंग फीस मतलब क्या हुआ, बोर्ड मीटिंग्स होते हैं। कंपनीज एक्ट में मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स आर टू बी हेल्ड वंस
there should not be a gap of more than 4 months between each board meeting, preferably हर क्वार्टर करते हैं तो सिटिंग फीस मिलता है उनको, आकर के बैठते हैं तो उनको एक तो 5,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 जो भी है नॉमिनल अमाउंट मिलता है सिटिंग फीस। सर तो ये जीएसटी में मैं क्यों बोल रहा हूँ, जीएसटी का क्या एलिमेंट है इसका? कैन एनीवन रिमेंबर if there is any RCN provision on director remuneration which has been paid by a company to a director, is there any RCM which the company needs to pay? RCM है सर इसका, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में आपका ये मेंशन किया हुआ है, और ये कहां पर मेंशन किया हुआ है? नोटिफिकेशन 13/2017 डेटेड 28 जून 2017, सेंट्रल टैक्स रेट की नोटिफिकेशन, जहां पर जीटीए है, लॉयर है, सिक्योरिटी सर्विसेज है, वहां पर ये भी मेंशन्ड है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का मतलब क्या हुआ बताइए? सर अनेक टाइप का हो सकता है। अनेक टाइप मतलब क्या हुआ? टू द सिटिंग फीस अभी दिख रहा है अपने को, सर इसके ऊपर आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, आरसीएम विल बी एप्लीकेबल। मतलब क्या हुआ? ये 6 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 50 लाख रुपया पे जो सिटिंग फीस पेमेंट किया 18%, उसको किसको पेमेंट करना पड़ेगा? कंपनी को, आरसीएम। और क्या इश्यू करना पड़ेगा? सेल्फ इनवॉइस अंडर 31(3)(f), राइट, विद इन 30 डेज अंडर न्यू रूल 47A जो कल अपने डिस्कस किए थे। दूसरा क्या? रेम्यूनरेशन। सर रेम्यूनरेशन दो टाइप का है, ये देखिए, एक तो देखो फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड, इस पे आरसीएम लगेगा, कमीशन पे लगेगा सर, लगना चाहिए सर कमीशन पे। सर दूसरा है आपका डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ये रेम्यूनरेशन जो है सैलरी मिलता है सर। सैलरी मतलब क्या हो गया सर? 50,000 रुपया सैलरी मिलता है उसको। तो सैलरी जो मिलता है उसके ऊपर में क्या है? दिस इज अ शेड्यूल 3 ट्रांजैक्शन। इफ एनी सैलरी इज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई, that it will not come under the purview of GST. Schedule 3 means all transactions which are neither considered as a supply of goods nor supply of services. तो अगर तनख्वाह मिल रहा है तो उसके ऊपर में कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टर सीए है, सीएस है, सीएमए है, एमबीए है, फाइनेंस का कुछ करके आया है और वो उसके लिए कुछ चार्ज करता है प्रोफेशनल सर्विसेज, राइट, तो वो प्रोफेशनल सर्विसेज के हिसाब से 30,000 रुपया उसको महीना में एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो आपका क्या होएगा? टीडीएस। टीडीएस पता है अपने को? इनकम टैक्स एक्ट में जो टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स विथहोल्डिंग टैक्स, उसमें 194J बोल करके एक सेक्शन होता है जो प्रोफेशनल सर्विसेज, मैं सीईओ हूं, आज नासिर मेरे को अगर पेमेंट करता है 30,000 रुपया, तो उसको नासिर को 10% काट करके मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा, टीडीएस मेरा 194J में कटेगा। वैसे ही इनका जो सैलरी तनख्वाह नहीं है, जो प्रोफेशनल सर्विसेज के तहत उनको पैसा मिल रहा है, तो 194J में कंपनी में डिडक्ट टीडीएस ऑफ 10%। तो आप लोग जब देखोगे अच्छा टीडीएस कटा है इसमें, तो सबसे पहले देखोगे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, अच्छा सिटिंग फीस में जाते हैं, बोर्ड मीटिंग में है, अच्छा आरसीएम पेमेंट किया, अगला पेमेंट किया, अच्छा सेल्फ इनवॉइस किधर है? सेल्फ इनवॉइस है, अच्छा जीएसटीआर 1 में टेबल 13 में डालिए डॉक्यूमेंट समरी में, अच्छा सेल्फ इनवॉइस कब क्रिएट किए थे? 30 दिन का भी मैंडेट हो गया, अंडर 47A पेनल्टी डालेंगे सर। ये सब तरीका है कहां का आप लोग ढूंढेंगे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। दूसरा है आप देखेंगे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, अच्छा तनख्वाह मिल रहा है तो टीडीएस किसके अंदर कट रहा है? 194J में या 192 में? 192 का पता है अपने को, जो अभी तो 12 लाख तक का हो गया रिबेट, पता है ना सर अपने को बजट में, तो 12 लाख से ऊपर का मानिए 12,75,000, 75,000 सैलरी डिडक्शन, 15 लाख कोई आदमी कमाता है, तनख्वाह में बोल रहा हूं, नया स्कीम में, तो उसको क्या होगा? टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि रिबेट है। रिबेट का मतलब क्या हुआ? 12,75 तक, क्या 12 तक आपको अगर कमाएंगे तो कुछ नहीं लगेगा आपका, लेकिन जहां पर आप 13-14 में आ जाएंगे मार्जिनल रिलीफ के बाद में, तो आपको कहां से कैलकुलेट स्टार्ट हो जाएगा? 4 लाख से, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा सर। तो वो जो पेमेंट कर रही है वो साल के बिगनिंग में पता रहता है एम्प्लॉयर को, तो वो क्या करता है? मंथली टीडीएस काटते रहता है। अपने बोलते हैं ना इन हैंड सैलरी क्या है बताओ, तो इन हैंड सैलरी का मतलब क्या हुआ? टीडीएस डिडक्टेड, पीएफ डिडक्टेड, ईएसआई डिडक्टेड, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड, तब जाकर के मेरे हाथ में इन हैंड सैलरी है। तो टीडीएस जो अमाउंट है वो 192 में काटते हैं हर महीना, वो क्या डिनोट करता है कि वो तनख्वाह वाला आदमी है, सैलरीड एम्प्लॉई है, तो वो तो शेड्यूल 3 आ जाता है। लेकिन 194J में अगर डिडक्शन हुआ है टीडीएस का, कंपनी ने डिडक्ट किया, तब आरसीएम लगेगा। एंड इफ द कंपनी हैज नॉट पेड आरसीएम on the amount paid to the director as professional fees where TDS has been deducted under 194J, then the company will be liable to pay RCM with interest and penalty. ये सब ऑडिट के पॉइंट्स हैं। ये देखिए ये सब जो आपने बोले 192 कैसे करता है? हाँ सर,
प्रोफेशनल पर टीडीएस कैसे कटेगा? अगर अनरजिस्टर्ड है आप तो सर टीडीएस तो सर जीएसटी का नहीं बोल रहा हूं मैं, इनकम टैक्स का टीडीएस का बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स में सर तनख्वाह जब भी अपने कमाते हैं या तो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल 194J एक तो सेक्शन होता है, उसमें क्या है प्रोफेशनल सर्विसेज, अगर आप 30,000 रुपया से ज्यादा एक ट्रांजैक्शन या क्यूमुलेटिव पूरा साल में अगर कोई सीए, लॉयर या कोई भी प्रोफेशनल आदमी अगर पेमेंट मिलता है उसको, तो 10% जो पेमेंट कर रहा है 10% उसका काट करके पेमेंट करेगा। तो ये क्या हो गया, मेरे लिए मेरा इनकम है सीए के लिए, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है आपका इनकम हो 30% आप 1.5 साल बाद में पेमेंट करेंगे, हमको मतलब नहीं है, आप 10% तो आज पेमेंट करिए। तो मेरे लिए एडवांस टैक्स हो गया ना, मेरा टीडीएस कट गया तो मेरा इनकम पे कट गया है, जिस टाइम पेमेंट कर रहा है उसी टाइम कट गया। तो मेरे को 1.5 साल बाद में जब मैं अपना आईटीआर फाइल करूंगा, आईटीआर 3, 4 जो भी फाइल करूंगा, तो उसमें मेरे को इतना का क्रेडिट मिल जाएगा जो मेरे 26 सीएस या एसटीएस में आएगा। लेकिन एडवांस टैक्स उसी टाइम गवर्नमेंट को मिल गया। सर गवर्नमेंट 1.5 साल वेट करे तो कैसे मैनेज होएगा, वो तो लॉस हो जाएगा सर उनका। तो टीडीएस एडवांस टैक्स कलेक्ट करते रहते हैं। तो मैं बोल रहा हूं अगर सैलरी के तहत 192 में टीडीएस अगर कटता है तो आरसीएम नहीं लगता है, बिकॉज शेड्यूल 3 आ जाता है। लेकिन 194J के तहत कोई अगर प्रोफेशनल सर्विस दे रही है उसके तहत कटता है। और आप लोग देखते हैं कि कंपनी ने टीडीएस काटा है डायरेक्टर का 194J पे, काफी जगह ये भी देखते हैं रिलेटेड पार्टी वाइफ है सीए लिखा हुआ है, मदर लिखा हुआ है सीएस। सीधा दिमाग आपका घूमना चाहिए कि सर अच्छा इनको इसका मतलब कि तनख्वाह मिल रहा है, कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, तो 194J का काट रही है क्या? जहां काट दिया आप सीधा आरसीएम पकड़ लीजिए, सेल्फ इनवॉइस पकड़ लीजिए, उससे सब प्रोविजन आ जाएगा। अच्छा, डायरेक्टर का गेस्ट हाउस है क्या, डायरेक्टर का रेसिडेंस है, वो हम रेंट पे दे दिए कंपनी को, और द कंपनी इज पेइंग रेंट टू द डायरेक्टर, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया। डायरेक्टर को पैसा मिल रहा है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन नहीं बोले तो डायरेक्टर पेमेंट बोले, मिल रहा है, इसके ऊपर आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा? कंपनी इज मेकिंग पेमेंट ऑफ रेंटल टू द डायरेक्टर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी गिवन बाय द डायरेक्टर टू द कंपनी फॉर रेंटिंग पर्पसेस। तो डायरेक्टर को पैसा मिल रहा है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन टाइप का है, कमीशन टाइप का है, वो नहीं है, तो उसके ऊपर भी आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा सर। ये आपका सर्कुलर में आया है, पेड टू डायरेक्टर अगेंस्ट सप्लाई मेड बाय हिम इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर। तो अगर कोई भी रेंटल पेमेंट्स अगर मिलता है डायरेक्टर को, कोई भी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, तो आरसीएम नहीं लगेगा उसमें। तो आरसीएम सिटिंग फीस या तो प्रोफेशनल सर्विसेज में डायरेक्टर रेम्यूनरेशन में लगेगा। ये देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट शेड्यूल 3 एक्सेट्रा, ये सब जो आपका है। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 अपने को पता है, उसमें से रेंट अ कैब सर्विसेज वो ब्लॉक क्रेडिट है कि नहीं है? रेंट अ कैब सर्विसेज ले रहा हूं, ब्लॉक क्रेडिट है ना 17(5) में, पढ़े हो सर आप लोग? कैब सर्विसेज है, कोई भी रेंटल कैब सर्विसेज है, ब्लॉक क्रेडिट है। लेकिन अगर मैं कोई एम्प्लॉय को मैं कैब सर्विस देता हूं 8:30 बजे 8 बजे के बाद में विमेन एम्प्लॉइज लोग को, और बंगाल या तमिलनाडु में मेरा रूल है, लोकल रूल ट्रेड एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में, कि अगर विमेन एम्प्लॉई है और 8:30 से 6 बजे तक सुबह तक अगर काम कर रही है, तो मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी यू हैव टू प्रोवाइड कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो वो केस में ब्लॉक क्रेडिट भी काम नहीं आएगा। द कंपनी कैन क्लेम दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बोला गया है, देखिए विमेन एम्प्लॉइज ट्रैवल बियॉन्ड, ये आपका केस लॉ आया हुआ है एक्सेस हेल्थ केयर का, वेयर इन द केस ऑफ तमिलनाडु ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉइज टू ऑफर employers to offer transportation service to women employees। ये देखिए आपका कैब सर्विस, रेंटेड कैब सर्विस आपका 17(5) ब्लॉक क्रेडिट, क्लॉज बी सब क्लॉज 3 में आपका ब्लॉक्ड है, लेकिन आपका इसमें मिलेगा क्योंकि प्रोवाइजो में लिखा हुआ है, देखिए प्रोवाइडेड दैट आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज, जो कैब सर्विस है, और बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी, मतलब मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू द एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तमिलनाडु स्टॉक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लोकल एक्ट है, बट एक्ट इन फोर्स उसके तहत बोला गया है, तो इसमें आपको ब्लॉक रेट में नहीं रुकावट होएगा। सीएसआर बड़े कंपनी का आप देखते हो, सीएसआर का थ्रेशोल्ड्स है 5 करोड़ के ऊपर का अगर टर्न ये प्रॉफिट हो, 100 करोड़ के ऊपर का अगर टर्नओवर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपको मतलब क्या है, क्लीन गंगा की कोई आपका चैरिटी है, पॉवर्टी है, कोई ऑर्फनेज है, तो लिस्ट ऑफ मतलब कि ये एलिजिबल एक्टिविटीज रहता है, उस पे आपको खर्चा करना पड़ता है। क्या खर्चा करना पड़ता है? 2% ऑफ योर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, उतना जेब से निकाल करके एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ता है आपको सीएसआर के लिए, जिससे सोसाइटी का भला हो, राइट। तो वो जो हम सर्विस दे रहे हैं, मतलब कि जो पैसा दे रहे हैं, राइट, सर्विस जो हमारा मिल रहा है, तो इनपुट क्लेम कर सकते हैं उसका,
कैन वी क्लेम इनपुट फॉर दैट? नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड है सर। ये आपका नया इन 2023 बजट में आया हुआ है, ये आपका फिनेंस एक्ट में कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट के तहत में किया गया हो तो उसके ऊपर में इनपुट नहीं मिलेगा। दिस इज सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 एफ है। तो आप लोग का अगर कोई भी क्लाइंट कोई भी कैसा आप लोग सॉरी एसएससी देखेंगे कॉर्प सीएसआर में अगर कोई भी इनपुट क्लेम करके रखा हुआ है तो इट इज नॉट अलाउड। अच्छा, एम्प्लॉई का कैंटीन है फैक्ट्री में और 50 रुपया का मेरा कॉस्टिंग है, 25 रुपया सब्सिडी देता हूं मैं एम्प्लॉय को और 25 रुपया कलेक्ट करता हूं एम्प्लॉय से रोज, तो साल का मेरा कलेक्शन हो जाता है 50,000 के ऊपर का परक्यूजिट जो भी मैं दे रहा हूं, तो ये टैक्सेबल है क्या? नहीं है। अपने को पता है ना 50,000 गिफ्ट अब गिफ्ट अप टू 50,000 रुपीज कैन बी गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय विच इज कोई भी जीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो 50 रुपया में से 25 रुपया कंसेशन 25 एवरी डे करके इंटू 30 इंटू 12 करके 50,000 से बढ़ गया, तो कंसेशन इज गिफ्ट, डिस्काउंट दे रहा हूं खाना पे मैं, ये तो आप लोग को पकड़ने का है। तो आप बोलते हो सर ये तो एम्प्लॉय को 50,000 से ऊपर का गिफ्ट दे दियो, कंसेशन दे दियो, तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? जीएसटी लगेगा। बट सेम चीज इफ इट इज ऑब्लिगेटरी अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 टू प्रोवाइड अ क्रेश और अ कैंटीन मैंडेटरी फॉर वर्कर्स विच आर मोर देन 100 और 250 इन अ फैक्ट्री, देन उस पे आपका नहीं लगेगा ये चीज। अगर रेसिडेंशियल क्वार्टर देंगे तो रेसिडेंशियल क्वार्टर तो सर लेकिन ये तो आपका एम्प्लॉय के कैपेसिटी में दे रहे हैं ना ये वाला चीज, तो एम्प्लॉय के कैपेसिटी में अगर रेसिडेंशियल क्वार्टर दे रहे हैं तो परक्यूजिट आपका ये हो गया, आप ये बोल रहे हैं। बट अगर आपका ये सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी में एडेड है, आपका कॉन्ट्रैक्ट आता है कॉस्ट टू कंपनी, उसमें से 50,000 कैश का, उसमें से 15,000 परक्यूजिट फॉर क्वार्टर रेंटल आपको पेमेंट नहीं करना, तो 65,000 हो गया। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है सीटीसी में तो वो शेड्यूल 3 में आपका आ जाएगा, वो आपका सैलरी में आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो ये तो कुछ है ही नहीं सर। तो ये सब अगर कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, ये सब जो अपने अभी बात कर रही है, तब कुछ नहीं लगेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं हो तब इस पे आपका देखिए रिकवरीज फ्रॉम कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी इन केस ऑफ फैक्ट्री विल नॉट बी लायबल फॉर जीएसटी अंडर आरसीएम एज द केस इज मैंडेटेड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। अच्छा, नोटिस पे कोई भी एम्प्लॉय है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर काम कर रहे हो, नोटिस पे 30 दिन का देना पड़ता है ना, तो ऐसे बात होगी क्या? हैंडओवर तो देना पड़ेगा ना। आप बोलते हो नहीं सर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बोल रहे हैं कि 2 दिन में ज्वाइन करना है, तो आप छोड़िए जो भी नोटिस पे जो भी पैसा लगेगा 10-15 हजार हम पेमेंट कर देंगे, पहला सैलरी आएगा तो आप पेमेंट कर देते हो। तो द प्रीवियस एम्प्लॉयर कलेक्ट्स नोटिस पे ऑफ 10-15,000 पेनल्टी फ्रॉम यू एज नोटिस पे वायलेशन। वो कंपनी के हाथ में जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा उस पर? अब तो वो आपका एम्प्लॉय भी नहीं है, वो तो एक्स एम्प्लॉय है, लेकिन उससे आपको रियलाइजेशन हुआ है, लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस। जैसा सुनिए लिक्विडेटेड डैमेजेस बोल करके। लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब क्या होता है? कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हो, जैसे कि मैं आपको माल बेच रहा हूं, आप खरीदते नहीं हो, तो मेरा तो खरीदा हुआ है माल, किसको बेचूंगा मैं? तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में, इफ यू डू नॉट बाय फ्रॉम मी यू विल हैव टू पे 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन एज कंपनसेशन। उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैसे ही नोटिस पे हो गया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर कोई भी रियलाइजेशन हो रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल हो, नोटिस पे हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो एक्सेट्रा, तो सर्कुलर आया सर, सर्कुलर 178 आप लोग का डिपार्टमेंट से ही, नो जीएसटी। क्यों जीएसटी नहीं है? बिकॉज कंसिडरेशन क्या है सर? ये तो मियर फ्लो ऑफ मनी है। एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है एम्प्लॉय को। दूसरा है, मैं आपको रखता हूं यहां पर आपसे कमाने के लिए, क्या 10-15 हजार रुपया, क्या आपको रखता हूं और ये कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं ये चीज दिखा करने के लिए कि आप डिसुएड हो कि आप ये चीज मत करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कंसिडरेशन आप बोलेंगे इट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर टॉलरेटिंग द एक्ट ऑफ सच प्रीमेच्योर क्विटिंग। मैं टॉलरेट कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ी बैठा हुआ कि आपसे पैसा कमाऊं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मियर फ्लो ऑफ मनी है, बट ये तो जो मेरा एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं जिससे ये क्लॉज डाला हूं जिससे कि आप डिसुएड हो, आप ऐसा काम नहीं करो, तो देयर इज नो कंसिडरेशन, इट इज अ मियर फ्लो ऑफ मनी। ये पूरा आपका उसमें रीजन दिया हुआ है सर्कुलर 178। तो काफी बार क्या होता है सर, पहले जब ये आया नहीं था सर्कुलर 3rd of August 2022, भर के नोटिसेस आप लोग अदर इनकम में देखते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, क्या अमाउंट रिसीव्ड
एज पेनल्टी फ्रॉम बायर, ऐसे करके। और देखते थे आप लोग सेल में नहीं है, अदर इनकम में है, बोलते पैसा निकालो, जीएसटी आप पेमेंट नहीं किया, पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ में। 74 फ्रॉड में, ऑडिट में निकला है। ऑडिट में तो सर एक पैराग्राफ तो आप लोग का फेमस है, हैड वी नॉट कंडक्टेड ऑडिट दिस कुड हैव एस्केप्ड द व्हाटएवर दिस थिंग। सो इट इज अंडर फ्रॉड और विलफुल सप्रेशन, तो आप 100% पेनल्टी लगेगा उसके ऊपर में 74 में। गलत है ना सर ये? सही है। तो ये सब क्लैरिटी हो गया है 178 में कि लिक्विडेटेड डैमेजेस में सर ये नहीं है। आप जो बोले ना सर उसके लिए भी केस लॉज आए हैं आपका, जैसे लैंडिस जीवाईआर का है, उसमें बोलते हैं कि सर सिर्फ ये बोलने से, पैराग्राफ बोलने से प्रूव नहीं होता है, ये तो आपका काम है ऑडिट करने का। मैं नहीं बोल रहा, हाईकोर्ट बोल रहा है, ये तो आपका काम है ऑडिट करने का, वेरीफाई करने का। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। आप ये प्रूव करो कि उसका मंशा था वो, कि वो चोरी करना चाहता था, इवेशन करना चाहता था। अगर मैं बुक्स में डाल करके रखा हूं तो इवेशन हुआ है, अगर मैं रिटर्न में डिस्क्लोज करके रखा हूं इवेशन हुआ है? नहीं हुआ है। तो वो सब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आ जाता है, लिटिगेटेड केस वाला चीज आ जाता है ये। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कुछ केसेस में लगेगा। कुछ कुछ केसेस क्या है? प्री मेच्योर पेमेंट ऑफ लोन। लोन 5 साल के लिए बैंक दिया है, अगला पहले कैलकुलेट करके रखा है, अच्छा 5 साल तक दिया है 8% करके, अच्छा मेरा 1.5-2 लाख रुपया कमाई होगा। उसके पास सरप्लस पैसा आ गया, 2-2.5 साल में रीपेमेंट कर दिया, तो उसका 2-2.5 साल का तो इंटरेस्ट मर गया, तो उसका तो प्री पेमेंट का कुछ तो चार्ज देगा वो, उसके ऊपर लगेगा। क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट बना था वो इतना सब्सटेंशियल था, ये पर्टिकुलर क्लॉज, कि एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन बनता है, दिस नॉट अ मियर फ्लो ऑफ मनी। तो ये आप लोग सर्कुलर पढ़िए, इसमें कुछ कुछ केसेस में लगता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडिटी डैमेजेस में जीएसटी नहीं है, लॉजिक भी दिया हुआ। अच्छा रीइंबर्समेंट सर, रीइंबर्समेंट में जीएसटी लगता है? अगर आप पीएल देख रहे हो, या तो अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैंक फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हो, बैंक स्टेटमेंट ही देख रहे हो, मोटा अमाउंट आ रहा है 50 लाख रुपया रीइंबर्समेंट, उसको आप बोलते सर 50 लाख रुपया क्या है? बोलते नहीं सर ये तो कमाई नहीं है, कमाई तो मेरा 75 लाख था, उसके साथ में 50 लाख का मैंने उनके बिहाफ में खर्चा किया था, वो रीइंबर्समेंट की है, तो टोटल मेरा 1 करोड़ 25 लाख का मेरा आया था। तो आप बोलेंगे अच्छा रीइंबर्समेंट प्रूफ करो, आप सब ये सब मांगेंगे सर, ये सब अगर नहीं होगा तो वो 50 लाख पे भी टैक्स मांगिए। दैट इज रूल 33। रूल 33 एज अ प्योर एजेंट। आर वी अवेयर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्योर एजेंट? प्योर एजेंट का मतलब क्या होता है सर? प्योर एजेंट मतलब क्या हुआ? आज मैं सीए हूं, मेरे को एक कंपनी, क्लाइंट आया है, बोलता है सर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, ठीक है सर, मेरा फीस रहेगा फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपया, और चलान हम पेमेंट करेंगे एमसीए पोर्टल में 500 रुपया, वो एमसीए पोर्टल के लिए है। लेकिन 500 रुपया के लिए तो क्लाइंट को मैं बोलूंगा नहीं ना कि आप पेमेंट करो तब मैं पेमेंट करूंगा, तो मैं क्या करता हूं अपने जेब से पेमेंट कर देता हूं एमसीए पोर्टल पे। तो जब मैं बिल करूंगा क्लाइंट को तो सिर्फ 5,000 प्रोफेशनल फीस लूंगा कि 500 जो उनके बिहाफ पे पेमेंट किया हो रीइंबर्समेंट लूंगा, 5,500 लूंगा। लेकिन इनवॉइस में कैसे दिखाना है सर उसको? 5,000 दिखाना है, नीचे में दिखाना है रीइंबर्समेंट फॉर एमसीए चलान 500 ब्रैकेट में इन दी कैपेसिटी ऑफ अ प्योर एजेंट अंडर रूल 33 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर नहीं लिखा हुआ है पहला वायलेशन एसएससी का। दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्योर एजेंट से मुंह बोला कुछ नहीं होता है, प्योर एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखना होना चाहिए कि आप मेरे को क्लाइंट ऑथोराइज कर रहे हो कि 500 रुपया पेमेंट करूंगा, पहला चीज। दूसरा क्या है कि सेपरेटली इंडिकेट होना चाहिए इनवॉइस में, 5,500 डाल करके करेंगे तो हर आदमी पेमेंट करेगा जीएसटी, 5,000 प्लस 500 इन कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट। तीसरा क्या है, सिर्फ 500 रुपया नहीं मेंशन होएगा, आई एम प्रोवाइडिंग यू प्रिंसिपल सर्विस, उसके तहत मेरा कुछ रीइंबर्समेंट आ रहा है। सिर्फ रीइंबर्समेंट का बिल तो होता नहीं है ना, तो ये बोल रहे हैं कि देयर शुड बी अ प्रिंसिपल सर्विस अगेंस्ट विच आप ये रीइंबर्समेंट का ले रहे हो। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए आपका, नीदर इंटेंस टू अर्न। मैं 500 रुपया का चलान पेमेंट करके खुद का रजिस्ट्रेशन थोड़ी करा रहा हूं, तो क्लाइंट का करा रहा हूं ना, सो आई एम नॉट होल्डिंग एनी टाइटल टू द गुड्स और सर्विसेज, ये तो सामने वाला के लिए, ये सब आपका। और मैं 500 ही चार्ज कर रहा हूं, 501 चार्ज नहीं कर रहा हूं। जिस टाइम 501 चार्ज कर दिया मैं, मतलब इफ देयर इज अ प्रॉफिट एलिमेंट टू द रीइंबर्समेंट, पूरा 501 रुपया मेरा टैक्सेबल वैल्यू अंडर सेक्शन 15 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो लॉ बोलता है सर, रूल बोलता है आपका, ये सब चेक करना है, ये चेक नहीं करेंगे तो आप पकड़ सकते हो उसको। 99% इंडस्ट्री फॉलो नहीं कर, पता ही नहीं है प्योर एजेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े मॉल्स है, उसमें से 20-25 जो छोटे छोटे शॉप्स है,
शॉप का सब मीटर्स होता है कि फ्लोर का सब मीटर होता है। तो मॉल वाले क्या करते हैं, मॉल वाले को सीएससी क्या वेस्ट बंगाल जो डिस्कॉम जो है उन लोग बिल देता है 1 लाख रुपया का पूरा मॉल का। उन लोग सब मीटर के हिसाब से एक्चुअल जो यूनिट आप यूज किए महीने में उसके हिसाब से पर यूनिट का जो एक्चुअल यूनिट कॉस्ट आता है 5 रुपया 5.5 6 7 रुपया इंटू करके आपको क्या करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ में एक रीइंबर्समेंट का भी बिल देते हैं ना कि रेंटल महीना का रेंटल के साथ में मेंटेनेंस दो प्लस इलेक्ट्रिसिटी का रीइंबर्समेंट दो। हम तो पेमेंट कर दिए सीएससी को, आप उसका रीइंबर्समेंट दो मेरे को, आपके बिहाफ पे हम पेमेंट किए है ना। अरे हम तो अब थोड़ी मॉल के ओनर, हम तो बेच दिए आपको जगह कि रेंट पे दिए हो तो आपको पेमेंट करना है, बट आई हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट। तो इसमें आपका सर्कुलर आया सर, दिस इज सर्कुलर, ये कब आया, अभी एक सवा साल हुआ है। इसमें फॉर रियल एस्टेट ओनर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इन लोग के अकाउंट्स अगर देख रहे हैं तो इनका भी एक तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और इनको बेनिफिट मिलेगा एज अ प्योर एजेंट। मैं बिल्डर कलेक्ट कर रहा हूं रीइंबर्समेंट, तो रेंट अगर 50,000 रुपया कलेक्ट कर रहा हूं तो सिर्फ 50,000 पे जो लैंडलॉर्ड है कि जो आदमी है वो टैक्स पेमेंट करेगा। 50,000 प्लस 5,500 जो रीइंबर्समेंट मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे जो एक्चुअल्स पे है उसके ऊपर में आप लोग जीएसटी चार्ज नहीं कर पाओगे। ये तो सर्कुलर बोल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको वो सब करना पड़ेगा, रूल 33 का जो मैंने आपको बोला है। अच्छा, ईवे बिल का जो आप लोग देखते हो, ये एक तो अपने स्टार्टिंग में देख रहे थे, ये मिस हो गया था, एक बार देखते हैं ये वाला रखिए। ये देखिए सर, ये तो वन ऑफ द पैरामीटर्स है फॉर स्क्रूटिनी, इंस्ट्रक्शन 01/2022, इंस्ट्रक्शन 01/2023 क्या है, ईवे बिल, ये आपका नोटिस है। इसमें क्या बोलते हैं, 1 में इतना सेल है, 3B में 9 में इतना सेल है, 9C में इतना सेल है, ईवे बिल में इतना सेल दिखा रहा है। 3B में आपने कितना पेमेंट किया, 3B में पेमेंट किया 35,32,000, वाह, ईवे बिल में 35,83,000 आ रहा है। तो ईवे बिल आप इतना क्या जनरेट कर दिए सर, आप इसको कम पेमेंट किए, इतना अमाउंट का पेमेंट करिए या तो जस्टिफाई करिए। सर जस्टिफाई ऐसे करेंगे हम, ये आप लोग करना पड़ेगा सर। तो ये ऊपर में क्या है सर, ये ईवे बिल का डेटा है आपका, कितना ईवे बिल में आ रहा है आपका, सीजीएसटी एसजीएसटी 88,21,470। अपने को कहां पहुंचना है, अपने को पहुंचना है 3B में, 3B में 87,95,099 अपना है यहाँ पर, सॉरी 88,21,000 नहीं, ये नहीं, ईवे यहाँ पर 87,95,000 है, राइट, यहाँ पर 88,21,000 है, तो यहाँ पर 3B का है। अच्छा, सर्विसेज पे वे बिल लगता है, नहीं लगता है, लेकिन 3B में पेमेंट की है सर्विसेज का, सर्विसेज सप्लाई कर रही है तो 3B में पेमेंट तो करना है ना, इट्स सप्लाई ऑफ सर्विस, टैक्सेबल सर्विस, तो 3B में भरा हुआ है मेरा, लेकिन वे बिल बना नहीं है, तो ऊपर का अमाउंट में है नहीं, नीचे पहुंचना है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना उसको, वी आर गोइंग टू ऐड दैट। तो पहला क्या है, आउटवर्ड सप्लाईज पर्टेनिंग टू सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर ईवे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। दूसरा क्या है, 1 लाख रुपया के अंदर का इंटरेस्ट रेट मेरा सप्लाई हुआ है, ईवे बिल लगेगा, इंटरेस्ट रेट मतलब बंगाल के अंदर ही सर, 1 लाख का, ऐसे 50,000 का बाकी स्टेट का है, लेकिन अपना थोड़ा सा 1 लाख करके रखा है, तो 1 लाख तक अगर इंटरेस्ट रेट ही जाता है तो कोई ईवे बिल लगता नहीं है अपना। लेकिन सेल हुआ है ना सर, सेल तो हुआ है, तो 3B में टैक्स पेमेंट हुआ है ना, लेकिन वे बिल बना नहीं है, तो वे बिल से ऐड होएगा, तो वे बिल में है नहीं ना, वो ऐड होएगा। वैसे करके इंटरेस्ट रेट है 50,000, ये 50,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्सेबल वैल्यू इंक्लूडेड टैक्स है, क्या है बताइए, ये 1,50,000 जो मैं बोल रहा हूं, इज दिस द इनवॉइस वैल्यू और द टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स इंक्लूडेड है कि सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू है? हाँ जी सर, टैक्स इंक्लूडेड है, इनवॉइस वैल्यू है सर। तो आपका यहां पर क्या है, 50,000 के नीचे का अगर इनवॉइस वैल्यू है इंटरेस्ट रेट, तो वे बिल नहीं लगेगा आपका, लेकिन सेल तो हुआ है, सेल बढ़ा हुआ है तो ऐड करेंगे। क्रेडिट नोट होता है, ऐसा कोई 1 लाख या 50,000 के नीचे का सप्लाई का क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट नोट अगर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके लिए वे बिल लगेगा। जब माल बेचे तब क्रेडिट नोट नहीं लगा, जब उतना ही माल अपना वापस आ रहा है तो क्रेडिट नोट लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन सेल कम हुआ है, क्रेडिट नोट इशू की है, लेकिन वे बिल बढ़ा हुआ है तो माइनस करेंगे। उसके बाद में कोई ऐसा वे बिल, कोई ऐसा सेल हुआ है जहां पर मैं कंसाइनर वे बिल बनाया ही नहीं हूं, कंसाइनी बना दिया, तो मेरा में आएगा, इसमें आएगा नहीं आएगा, लेकिन सेल हुआ है मेरा, तो नीचे में सेल भरा हुआ रहेगा, लेकिन
कंसाइनी ने बनाया वे बिल, मैंने से वे बिल नहीं बनाया है, तो ऊपर में वे बिल में नहीं है तो ऐड होगा। ये सब रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ेगा। तो एड हॉक नहीं बोल सकते सर कि वे बिल का, कि देखिए बहुत सारे केसेस ऐसा होता है जॉब वर्क या डिलीवरी चालान का, उसमें वे बिल हो सकता है कि आपका लगे बने, आपका इंटर स्टेट अगर आप बेचते हैं, इंट्रा स्टेट में तो नहीं है लेकिन सप्लाई है नहीं, सेल हुआ नहीं है वो, राइट। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर इनवॉइस लगता है लेकिन वे बिल नहीं लगता है, जैसे कि रेट डिफरेंस का क्रेडिट नोट, माल गया नहीं है वापस लेकिन रेट डिफरेंस हुआ, डेफिशिएंट, हम लोग उतना पैसा नहीं देंगे, तो वहां पर क्या हुआ, सेल कम हो गया लेकिन वे बिल तो बना ही नहीं है, तो वो डिफरेंसेस आता है सर उसका। ये सब प्रैक्टिकल चीज आप लोग को देखना पड़ेगा रिकॉर्ड्स। और ये बिल कैंसिल करके वन में नहीं दिखाया तो? हाँ जी सर, ये बिल कैंसिल कर दिया और वन में नहीं रिपोर्ट। ईवे बिल अगर कैंसिल कर दिया सर और वन में रिपोर्ट नहीं किया तो दोनों ही तो नहीं हुआ सर। ईवे बिल में भी पकड़ में आएगा नहीं, कैंसिल पकड़ता नहीं है इसमें, कंसाइनी जो बनाता वो पकड़ता नहीं है इसमें, और आप वन में दिखाई नहीं है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा ये सामने वाला आदमी को, देखिए ऑडिट लगेगा तो बुक्स में तो आपका हो ही गई, बुक्स में भी अगर नहीं है तो स्टॉक लेजर में आप देखेंगे माल कहीं से तो आया हुआ है, और फिजिकल स्टॉक में उतना आपका पड़ा हुआ नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल में आप बेचिए तो कच्चा का बेच दिया आप लोग, वो तो निकालना पड़ेगा, वो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा उसका। अच्छा ये देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो एग्जाम सप्लाई है क्या, टैक्सेबल सप्लाई है जीएसटी में, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। अरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लिए खरीदे हैं सर, एसआईपी सभी खरीदते हैं, कंपनी एसआईपी खरीदा है सर, वो एसटीटी और वो सब चीज अलग चीज हो गया, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर इसमें, दिस इज एन एग्जाम सप्लाई सर, ये आपका एग्जाम सप्लाई है, ये आपका मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन आपका जो 12/2017 में। मेरा बोलने का क्या मतलब है, ये एग्जाम सप्लाई है तो चेक करना है इनपुट रिवर्सल हुआ है कि नहीं हुआ, इसमें कोई भी बात नहीं दिया हुआ, सिर्फ दो चीज में बात दिया हुआ था रिवर्सल जिसमें नहीं होगा, एक है इंटरेस्ट और दूसरा है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स का सेल। तो ये तो आपका म्यूचुअल फंड का है, तो इनपुट रिवर्स किया है कि अगला नहीं किया है ये देखना आपको, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होएगा ये। सब कार्ड वाला जो सेल दिखाया था जिसका मार्जिन नेगेटिव था वो कहां नहीं होएगा सर, वो आपका आएगा लॉस फ्रॉम सेल ऑफ मोटर व्हीकल डेबिट साइड में आएगा आपका, वो भी एग्जाम सप्लाई में नहीं सर एग्जाम सप्लाई थोड़ी है सर, वो आपका जीएसटी में रिपोर्ट ही नहीं होगा सर, रिपोर्ट ही नहीं करेंगे उसको क्योंकि जीएसटी लगेगा ही नहीं सर उसमें। कार में आपका वैल्यूएशन रूल स्पेशल है सर, बोल रहे हैं कि बेचे 1 लाख रुपया में लेकिन बुक्स में अभी भी वैल्यू इनकम टैक्स कितना है 2.5 लाख रुपया है, 1.5 लाख का नेगेटिव मार्जिन है, तो जीएसटी का रेट 18% भी क्यों ना हो लेकिन जीएसटी क्या वैल्यू पे लगेगा वो बात दिया हुआ नहीं लगेगा उसमें। लेकिन अगर आपने इनपुट क्लेम किया हुआ है उस पर तब आपका ये सब कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो अमाउंट में आप बेच रहे हो उसके ऊपर में 18% पे पेमेंट करेगा, इनपुट अगर क्लेम नहीं किए उसका तब आपको वो बेनिफिट मिलेगा, वो आपका रूल में वैल्यूएशन रूल में है। ये देखिए सर इंश्योरेंस क्लेम पीएल में देख रहे हैं, अरे आता है सर इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम जब दिखता है तो क्या दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले, अच्छा इसका मतलब कुछ चीज लॉस हुआ है, फायर में जला है, अर्थक्वेक खा गया, सुनामी आया है, कि आपका अम्फन आया है, तो इसका मतलब गुड्स हैव बीन रिटन ऑफ और स्टोलन और इट हैज बीन गिवन अवे फॉर फ्री, जो भी है तो उसको सप्लाई मानते हैं अपने, कुछ भी अगर गुड्स रिटन ऑफ होता है एक्सेट्रा नहीं होता तो उसके इनपुट को कुछ करना पड़ता है सर, अपने को रिवर्स करना पड़ता है क्योंकि ये ब्लॉक क्रेडिट है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज एच उसमें दिया हुआ एनी गुड्स विच आर रिटन ऑफ, तो ये जैसे इंश्योरेंस देखेंगे वैसे दिमाग में ये अपने का आना चाहिए सर कि अच्छा क्लेम आया है, ओके तो क्या चीज फायर के थेफ्ट में गया, इनपुट रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ 17(5)(h) में, ये से रीड करेंगे सर। प्रोसेसिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस क्या होता है सर, जॉब वर्किंग चार्जेस, बैंक का इतना बड़ा होएगा क्या, 6.5 करोड़ का बैंक चार्जेस होएगा क्या, बैंक ही खरीद लेंगे हम तो प्रोसेसिंग चार्ज मतलब जॉब वर्किंग चार्जेस, जॉब वर्किंग चार्जेस मतलब क्या हुआ, डिलीवरी चलान आउट, डिलीवरी चलान इन, एक साल के अंदर माल आया है नहीं आया है, जो डिलीवरी चलान में वापस आया है वो आईटीसी 04 में मैंने दिखाया है क्या नहीं दिखाया है, जो मैंने भेजा है डिलीवरी चलान में आईटीसी 04 में दिखाया क्या नहीं दिखाया है, अगर आईटीसी 04 में फाइल नहीं करता तो कोई फाइन पेनल्टी नहीं है, बट यू हैव द राइट टू ब्लॉक माय इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट, रूल 86A। 86A में स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं है, लेकिन आपका जो आईटीसी 04 का अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा नहीं दिया हुआ, लेकिन उसमें दिया हुआ है एज पर डिस्क्रिशन दैट दे कैन ब्लॉक दैट पर्टिकुलर इनपुट
और कुछ ऐसा नहीं है, तो बहुत कम आदमी फाइल करते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा, यू नीड टू आस्क फॉर दी जॉब वर्किंग रजिस्टर। ये देखिए जॉब वर्किंग अगर हुआ तो 10 चीज और दिमाग में खुलेगा। सामने वाला आदमी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर किया है, अच्छा सामने वाला आदमी उतना माल रिटर्न नहीं किया तो वहां से बेच दिया है क्या, वहां से अगर बेचा है तो जीएसटीआर 1 में दिखाया है क्या प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर, वो सब चीज आपको देखना पड़ेगा। स्क्रैप अगर जनरेट हुआ है, बाल बनाते टाइम में स्क्रैप अगर जनरेट किया है, स्क्रैप बेच दिया है, तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर्ड है क्या, नहीं है जॉब वर्कर का, नहीं है तो कैसे बेच सकता है, ये सब चीज देखना पड़ेगा आपको। ये सप्लीमेंट्री रिकवरी मतलब क्या है, गुड्स रिटर्न, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल नेगेटिव मतलब क्या है, गुड्स रिटर्न, वेदर द ये क्या है, परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न तो सर सबसे ज्यादा खतरा का चीज है। मेरा क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट तो सर अभी हाथ पैर माथा सब बांध लिए, बोले है ना सर कि आप डाउनवर्ड अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते हैं 3.1 में जीएसटीआर 3 में, जब तक सामने वाला आदमी आईएमएस में एक्सेप्ट नहीं करके रिवर्स नहीं करता अपना 3B में टेबल 4A5 में। तो क्लियर कट कल बताए थे, ये तो पूरा वो गला पकड़ लेगा इसमें, तो आप लोग को देखना चाहिए चीज मूविंग है। दूसरा ये भी एक बार देखना चाहिए, पोस्ट सेल जो डिस्काउंट्स में बोला था, पोस्ट सेल डिस्काउंट में अगर 5 लाख रुपए के ऊपर का अगर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स होना है, अगर मैंने पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया हूं तो कोई क्रेडिट नोट मैंने इशू किया होगा, क्रेडिट नोट इशू किया तो सामने वाला इनपुट रिवर्स किया है कि नहीं किया है। 5 लाख के ऊपर का अगर इनपुट है डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में, तो उतना अमाउंट को रिवर्स किया कि नहीं किया, उसको प्रूफ देना पड़ेगा आपको। अगर 5 लाख रुपए के ऊपर का है पर वेंडर, तो उसको CACS के CMA से सर्टिफाई करके देना पड़ेगा कि कौन से रिटर्न में रिवर्स किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन से क्रेडिट नोट था, लिंकिंग करना पड़ेगा। लीगल गवर्नमेंट फीस, जब हम देखते हैं गवर्नमेंट फीस तो आरसीएम पेमेंट हुआ है क्या गवर्नमेंट फीस पे, जो हम लीगल देखते हैं एडवोकेट है, एडवोकेट का कोई भी हम फीस पेमेंट कर रही है तो कोई भी आरसीएम पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब आप लोग पकड़ेंगे यहां से। रिपेयर मेंटेनेंस देखेंगे, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस देखेंगे, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस में जीटीओ क्या जीटीए, कल मैंने बताया था जीटीए में वो भी आपका एनेक्सर 5 में फॉरवर्ड चार्ज में ले रहा है कि रिवर्स चार्ज में ले रहा है, वो देखना पड़ेगा। व्हीकल एक्सपेंस, ये तो आंख बंद करके ब्लॉक क्रेडिट है, व्हीकल वो भी एक्सपेंस तो ब्लॉक क्रेडिट है। फाइनेंशियल कॉस्ट इंटरेस्ट जो मैं पेमेंट कर रहा हूं इसका कुछ नहीं होगा। एम्प्लॉय कॉस्ट इनडायरेक्ट, इसके ऊपर कुछ इनपुट मिला है क्या, एम्प्लॉय को मैं गिफ्ट दिया हूं 70,000 का, गोल्ड कॉइन दे दिया हूं, खर्चा मार दिया हूं सेल प्रमोशन एक्सपेंस में, नीचे लिख दिया हूं कि गिवन गिफ्ट, किसको गिफ्ट दी है सर आप, बिजनेस का कैसे आपका ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में एम्प्लॉय को दी है क्या, 50,000 के ऊपर कैसे टैक्स लगेगा। किसी को और आप अगर ऐसे गिफ्ट दिए है तो इट इज रिलेटेड पार्टी को अगर आप दी है तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज C राइट विद शेड्यूल 1 कि आप किसी को कुछ भी रिलेटेड पार्टी को कुछ भी दे रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, ये विल इवन बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। OMR लेना पड़ेगा, ओपन मार्केट वाली जो मैंने 2 राहत बताया था आपको अभी क्रॉस चार्ज पे, अगर फुल इनपुट अगर क्लेम कर सकते हैं तो आपका बच जाएगा एक्सेट्रा। ये तो सब एक्सप्लेन कर लिए थे सर कल, जीटीओ है ये नील है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जहां पर कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं होता है तो एग्जेम्प्ट है। दीज आर, ये तो कल देखे थे अपने कंसाइनमेंट नोट सर। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, कमर्शियल ड्वेलिंग, अभी अपडेट आया था आप लोगों को कुछ इसके ऊपर में पता है। अभी कमर्शियल, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रेंट आउट कर रही है फ्रॉम 10th of October 10th of October 2024, तो अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर सेमिनार होता है, मानिए नासिन अनरजिस्टर्ड है, वो मेरे को लीज पे दे देता है कि रेंट पे दे देता है, तो मैं मतलब कि दायित्व मेरा हो जाता है कि मैं आरसीएम में इसको पेमेंट करूं, और वो अनरजिस्टर्ड है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेने के लिए सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा मेरे को। तो ये तो हो गया आपका सामने वाला अनरजिस्टर्ड। अब मानिए कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, मानिए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर हो तब क्या होगा सर, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मतलब एक कंपनी है, गेस्ट हाउस लेगा ना सर, डायरेक्टर लोग आएगा गेस्ट हाउस रखेगा ना, वर्कर्स लोग के लिए गोडाउन वहां पर सोता है उन लोग, तो रेसिडेंशियल है, गोडाउन छोड़ दीजिए, कमर्शियल हो गया। गेस्ट हाउस फॉर डायरेक्टर यूजेज, वो रेंट पे लेता है कोई आदमी से, रजिस्टर्ड वन रजिस्टर्ड डज नॉट मैटर, उसमें क्या होएगा,
आरसीएम लगेगा सर. इट इज एनी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग विच हैज बीन लेट आउट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड विच इज प्राइमरीली यूज फॉर अ कमर्शियल पर्पज. ये कमर्शियल पर्पज वर्डिंग नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ. एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है कि मैं अगर कोई भी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग खुद के पर्पस के लिए यूज करता हूं, सिर्फ रहने के लिए, सोने के लिए. अगर मैं प्रोप्राइटर हूं, मेरा बड़ा बाजार में साड़ी का दुकान है और मेरा एक ही पैन में, एक ही जीएसटीएन में मेरा धंधा चलता है, और मैं कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पास में बड़ा बाजार में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लेता हूं, 15,000 रुपया देता हूं. अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड फर्क नहीं पड़ता, बट आई एम यूजिंग इट मेरा खुद का यूज के लिए, प्रॉपर्टी स्टॉक रखने के लिए नहीं, तो उसमें एक्सेप्शन दे दिया गया है, वो कंटिन्यूड एग्जाम सप्लाई है. तो इसका बैक रीजनिंग क्या हो गया कि कोई भी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इफ हैज बीन टेकन ऑन रेंट बाय अ रजिस्टर्ड और नॉन अनरजिस्टर्ड पर्सन, बट बाय टेकन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, कंपनी ने लिया है जो रजिस्टर्ड है और वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, अपने डायरेक्टर के लिए कि वर्कर्स के लिए, तो आरसीएम पेमेंट करना पड़ेगा. कमर्शियल आपका आरसीएम स्टार्ट हुआ है कब से? अभी 10 अक्टूबर 2024 से. ये कब से स्टार्ट हुआ है रेसिडेंशियल? 18 जुलाई 2022. ये आपका नोटिफिकेशन 14 2022 डेटेड 5 जुलाई 2022 आया था, ये वाला. ये देखिए 18 तारीख से ये सब कल पूरा कवरेज हुआ था. सेल्फ इनवॉइस का, टाइम ऑफ सप्लाई, पेनल्टी क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा, सब कल डिस्कस किए थे. ये देखिए, ये आपको मैं दिया हूं, ये सब देखना पड़ेगा आपको. पीएल में लीगल सर्विस आरसीएम, लीगल चार्जेस अच्छा, एडवोकेट को अच्छा, प्रोफेशनल फीस अच्छा, ये डायरेक्टर को दिया हुआ है तो आरसीएम पेमेंट होगी. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बैक जाकर के आरसीएम देखना है. फ्रेट बैक जाके आरसीएम देखना है. फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड आरसीएम देखना है. स्पॉन्सरशिप चार्जेस में आरसीएम लगेगा. अभी क्या राहत आए? 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 21 दिसंबर, राहत आए. क्या राहत आए? कोई भी अगर कंपनी है जो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल नासिन है, कंपनी है, ठीक है, मेरे को स्पॉन्सर, मैं पैसा दूंगा, वो मेरे को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, मतलब कि मेरा नाम का बड़ा होर्डिंग लगाएगा सीए ईशान तुलसियान, तो मेरे को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है. लेकिन अगर नासिन कंपनी है, द सर्विस प्रोवाइडर, तो उसको आरसीएम में पेमेंट करने का दरकार नहीं है, वो फॉरवर्ड चार्ज में कर सकता है. ये नया चेंज आया आपका, नोटिफाई नहीं हुआ अभी तो. लेकिन अगर वो एनी अदर पर्सन अपार्ट फ्रॉम कंपनी के एलएलपी है, जैसे कि ट्रस्ट, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन लोग स्पॉन्सरशिप उन लोग को चाहिए ना सर, ये सब कोई तो इन लोग को ही चाहिए, तो इन लोग को स्पॉन्सरशिप जब चाहिए तब इन लोग को आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा. ये सब क्यों हुआ है? कैन एनीवन टेल मी क्यों हुआ है? ये कंपनी को क्यों हटा दी है, ऐसे क्यों कर दी है? क्योंकि सर स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर कोई भी आदमी दे रहा है, पहले पूरा आरसीएम में था, तो अगर कोई भी ऐसा सर्विस दिया जा रहा है जो आरसीएम सामने वाला पेमेंट करेगा, तो मेरे लिए तो एग्जेम्प्टेड है. अगर मेरे लिए एग्जेम्प्टेड है तो मेरा जितना इनपुट है सब मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा. तो नासिन जैसा, मानिए फॉर एग्जांपल कंपनीज के जो स्पॉन्सरशिप ले, या फॉर एग्जांपल कोई ट्रस्ट सोसाइटी, दुर्गा पूजा महोत्सव समिति एक्सेट्रा, जो भी ट्रस्ट सोसाइटी है एक्सेट्रा, उन लोग स्पॉन्सरशिप लेते हैं, तो स्पॉन्सरशिप सर्विस के अगेंस्ट में आरसीएम पूरा सामने वाला पेमेंट करता है, तो उनको पूरा इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा. बहुत झमेला हो रहा था कंपनीज लोग के लिए. तो बोले सर ठीक है, कंपनी एलएलपी आप लोग बहुत बड़े हो गए, आप लोग फॉरवर्ड चार्ज में करिए. आरसीएम कब करते हैं? जब सामने वाला आदमी के ऊपर में भरोसा नहीं रहता, तो छोटा आदमी है, जिससे कि आप आरसीएम में करें, आप बड़े आदमी है. आरसीएम का तो मतलब वही होता है ना. ये देखिए, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ है तो क्या करना है अपने को देखना है. सीआईएफ एफओबी, जब रिफंड जब आरएफडी 01 में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ऊपर में एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर. टोटल टर्नओवर में डोमेस्टिक भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है. ऊपर में क्या होएगा? टैक्स इनवॉइस में जो वैल्यू है, या तो एफओबी whichever is हायर, वो आपका ऊपर में होएगा. तो एफओबी वैल्यू ऊपर में यूजुअली जो भी वैल्यू जाएगा ऊपर में, नीचे में भी वही वैल्यू डालना है. नीचे पहले क्या कर देते थे? सीआईएफ डाल देते थे और ऊपर में एफओबी डाल देते थे. डिनोमिनेटर बढ़ गया इतना, न्यूमरेटर रह गया छोटा, और आपका रिफंड अमाउंट कम हो जाता था. वो सब चेंज हो गया. तो ये सब यू गाइस कैन गो थ्रू. सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, ये सिक्योरिटी गार्ड का है. अगर कोई भी नॉन कॉर्पोरेट अगर सिक्योरिटी सर्विसेज और सिक्योरिटी गार्ड दे रहा है कोई कॉर्पोरेट को, तो कॉर्पोरेट को आरसीएम पेमेंट करना पड़ेगा. ये सब आपका सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में मेंशन किया हुआ है. अच्छा, ये आप लोग फर्दर देख सकते हैं जो फर्दर पॉइंट्स था. अपने 5 मिनट्स बस एक बार ये जो जीएसपी है आपका, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है,
वो देख लेते हैं। काफी पॉइंट्स डाला हूं मैं इसमें। ये देखिए सर, जीएसटी, ये आपके है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। अब ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कौन हो गए सर? ये मैं या गवर्नमेंट नहीं हूं, इसके बीच में कोई कोई जैसे क्लियर टैक्स है, क्या जैसे आपका जीएसटी ज़ेन है, कुछ कुछ कंपनीज ऐसे है कि वो अपना एक तो डैशबोर्ड बना के रखे है, ईआरपी सिस्टम बना के रखे है क्लाउड पे। तो वो क्या करते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं उनको ई इनवॉइस बनाना है, ई वे बिल बनाना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, जीएसटीआर 1 फाइल करना है, 3B2B रिकॉन्सिलिएशन करना है, 3B फाइल करना है। तो मेरे को पोर्टल में जाकर के नहीं करने का मन है, मैं 3 तरीके से कर सकता हूं। ये देखिए, ये रूट 3 है, डायरेक्ट टैक्स पेयर जीएसटी पोर्टल में जाके कर रहा है, लेकिन ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को पता नहीं है। तो मैं हेल्प लूंगा किसका? रूट 1 रूट 2 का। तो रूट 1 हो गया आपका जो जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर विद ऐप, उसका खुद का ऐप है और वो जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर भी है। तो जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर का डेफिनेशन क्या हो गया आपका? जीएसपी स्टैंड्स फॉर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। ये क्या है? एनेबल्स अ जीएसटी टैक्स पेयर, मेरे जैसा आदमी, आम आदमी, टू कंप्लाई विद ऑल जीएसटी प्रोसीजरल प्रोविजंस थ्रू हिज वेब प्लेटफॉर्म। ये अपना खुद ऐसा वेब प्लेटफॉर्म बना करके रखे है जहां पर आप उनको महीना का या साल का 20,000 रुपया दीजिए, 25,000 रुपया दीजिए, एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और उसके बाद में वो क्या करेंगे, जब जीएसटीआर 1 और 3B फाइल होएगा तो रिकॉन्सिलिएशन वो कर लेंगे। आपका बुक्स का टैली का अपलोड कर लीजिए, जितना आपका बुक्स में इनपुट का बिल्स है, और 2B में जितना आया हुआ है वो जीएसटी पोर्टल से टान लेंगे और आपका बुक्स में वो रिकॉन्सिलिएशन कर लेंगे। रिकॉन्सिलिएशन में क्या रिजल्ट आएगा? पहला रिजल्ट एग्जैक्ट मैच, जहां पर डेसिमल तक भी मैच होता है। दूसरा क्या होता है? सिमिलर मैच, क्लोज मैच। उसमें क्या होता है? डेसिमल के 1-2 डिजिट अप डाउन रहता है, या तो इनवॉइस का नंबर के डेट में 1-2 डिफरेंस रहता है। और तीसरा है नो मैच, या तो बुक्स का इनपुट इनवॉइस पोर्टल में मिला नहीं है 2B में, या तो 2B का आया हुआ है वो बुक्स में आपने एंट्री नहीं किया हुआ। सो ये रिकॉन्सिलिएशंस करते हैं, आपके लिए सुविधा प्रोवाइड करते हैं ये चीज आपको। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका बीच में ये आ जाते हैं जीएसटी सर्वर के और टैक्स पेयर के। तो इनका वेब पोर्टल रहता है, मोबाइल ऐप रहता है, ईआरपी अकाउंटिंग पैकेज रहता है, एक्सेट्रा। तो ये आप हेल्प करते हैं कि आपका जीएसटी फाइलिंग्स प्रॉपर्ली हो। अब देखिए फाइलिंग डायरेक्टली, देखिए 3 मोड्स ऑफ इंटरेक्शन विद जीएसटी पोर्टल। एक तो डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं, ये सब मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरे को पैसा पेमेंट नहीं करना है, मेरा अकाउंटेंट है वो जानता है कैसे फाइल करें। दूसरा है एएसपी, यूज नॉट ए जीएसपी। एएसपी मतलब क्या हो गया कि जीएसटी पोर्टल पे लाइसेंस जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर नहीं है, लेकिन उसका खुद का एक ऐप बनाया हुआ है, और वो पर्टिकुलर ऐप है वो सामने वाला आदमी को बेचता है, लेकिन ही इज नॉट बीन सर्टिफाइड बाय दी ये पर्टिकुलर बाय दी ये जीएसटी पोर्टल, मतलब कि जो आपका ये जीएसटी डिपार्टमेंट है। सो दीज एंटिटीज प्रोवाइड द रिक्विजिट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फॉर जीएसटी ये कंप्लायंस। मतलब कि इसका जो लाइसेंस लिस्ट है, देखिए ये लाइसेंस लिस्ट है आपके, इतने सारे लोग हैं जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर लाइसेंस्ड है। इसमें आप बिग 4 देखेंगे, अर्नस्ट एंड यंग है, डेलॉयट है, अलग अलग है, अमेजॉन है, बीडीओ, ये सब है। तो टोटल अराउंड आई थिंक 70-75 है। इसके बाहर में अगर कोई भी ऐप प्रोवाइड करते हैं खुद का, तो वो एएसपी होते हैं, हु इज नॉट अ ये लाइसेंस्ड गुड ये जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर। So they provide the application and are also authorized to provide an interactive platform to access the GST portal. Such ASP who is also a GST सुविधा provider can connect seamlessly. तो अब ये देखिए तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है जो ASP जो आपका है, ये ASP who is also a GSP। तो ये आपका क्या है कि इसको अब कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, ये GSP है, इसके पास खुद का ऐप है, ठीक है। और ये आपका दूसरा ऐप में कहीं पे जाने का दरकार नहीं है। डेटा जैसे आता है ये लाइसेंस्ड है, जीएसटी पोर्टल में देता है और ये रिटर्न्स फाइल इसमें करता है, तो ये डायरेक्ट है इसमें, तो अलग कहीं पे जाने का दरकार नहीं है। ये देखिए ये है एएसपी यूज नॉट ए जीएसपी, तो ये टैक्स पेयर है, ये ऐप है एएसपी का। ये क्या करता है, काफी बार गवर्नमेंट का जो एपीआई है जो जीएसपी का वो यूज करता है, और रिटर्न्स जो है आपका मतलब ये लॉन्गर टाइम लगता है इसका, लेकिन लाइसेंस्ड ये नहीं है, जीएसपी लाइसेंस्ड है। तो जीएसपी जो है वो आपका एएसपी को भी अपना डैशबोर्ड और दे सकता है सर्विस प्रोवाइडर करने के लिए। मोर और लेस आपका यही है। इसमें क्या क्या एरियाज में हेल्प करते हैं, अपलोड इनवॉइस, अपलोड जीएसटीआर 1,
2A डाउनलोड रिकॉन्सिलिएशन जो अपने बोले 3B, ये सब चीज है। बेनिफिट्स क्या है? एरर्स नहीं रहेगा। आपका टैली है तो आपका डायरेक्टली टैली से आप अपना इनवॉइसेस डायरेक्ट अपलोड कर लीजिए, रिकॉन्सिलिएशन होकर के फाइल हो जाएगा। ये सब सुविधा आपको मिलेगा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 2A 2B में जो डेटा है, जीएसटीएन में जो वे बिल्स है, उसका जो डेटा ई इनवॉइस है, उससे सब आपको कुछ करने का दरकार नहीं है, वो आपका जीएसपी करेगा आपके बिहाफ में। इनका सबका अलग अलग वेबसाइट है, मेल एड्रेस है, सबका अलग अलग वेबसाइट है और सब अलग अलग बेच रहा है। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट का एक जो है वही सेम, नहीं, सबका अलग अलग रेट है, सबका अलग अलग सर्विस है, सबका अलग अलग ये प्रोवाइड करता है, सबका अलग अलग डैशबोर्ड है, राइट। बट ये लाइसेंस है सब इन लोग। ये देखिए, ये सब पर्टिकुलर सर्विसेज इन लोग प्रोवाइड करते हैं। ई रिकॉन्साइल, ई इनवॉइस, ई ट्रांजैक्ट एक्सेट्रा। मोर और लेस यही था। कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछिए जरूर। ये अपने ट्राई किए हैं अराउंड 200-250 स्लाइड्स कवर करने का। अब बाकी 50-70 स्लाइड्स है, वो मोर और लेस जो अपने कल डिस्कस किया, आज डिस्कस किए, उसी का रेफरेंस है। तो आप लोग को जब भी समय मिले तो आप लोग इसको देखिए। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज कनेक्ट करिए, अभी भी पूछ सकते हैं, बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपका एक अच्छा मैनुअल बन सकता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कभी भी आप लोग ऑडिट कर रहे हो कि कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है तो कहाँ का देखना है, क्या है। प्लस बाकी अमेंडमेंट्स जो आती है वो सब मैं ब्रॉडकास्टर्स में अपना डालते रहता हूँ। आई होप टू स्टे कनेक्टेड आप लोग सबके साथ में। आप लोग फीडबैक भी दीजिएगा कि जो जो हम शेयर करते हैं उसका भी आप लोग का व्यूज जो है अमेंडमेंट्स का एक्सेट्रा, वीडियोस भी मैं डालता हूं, तो लेट अस स्टे कनेक्टेड दैट। ठीक, कोई क्वेश्चंस है तो बताइए। एक फोटो